Good evening, Toronto. Welcome to MaxJeffShow, and I'm your host, Max, and you are watching MaxJeffShow only on Sports Trend. You can watch my show daily on Facebook Sports Trend channel, YouTube Sports Trend channel, or if you want to see me on a bigger picture, please open your TV, tune in Sports Trend channel on IPTV, and you can watch me. But in order to communicate with me, you need to browse me on Facebook and YouTube and ask questions so I can take your questions live on our Facebook and YouTube channel. Let me start a show with my sponsors quickly, and then we can talk about three test matches is happening these days, and one of them already had a result, and all of them like are surprising results right now. It's happening. So my first sponsor for tonight's show is Faizan Law Professional Corporation, our full services law firm, expanding our expertise because you matter to us. You can contact Faizan 905-277-2555, and his expertise are family law, immigration law, within estate law, real estate and property law, and civil and criminal litigation. My second sponsor for the show tonight is RSEC Sports, Hustle, Hit, and Never Quit. We provide best quality sports equipment and custom apparel and specialize in cricket equipment. According to RSEC Sports, they deal in export quality, high quality English below bats, custom apparel, or equipment. Please contact RSEC Sports, Sultan Bhai, info@rsecsports.com, 647-461-3110. And in order to get better deals, please do mention a Sports Trend reference. My third and last sponsor for the show tonight is your Honda guy, Mohammad Ramiz. He works at Classic Honda dealership, Brampton. If you're looking for new and used Honda cars on a low interest rate, please contact Mohammad Ramiz, 416-569-7249. Again, if you want to get a better deal, please do mention Sports Trend reference. Okay, let me give us a snapshot what's happening on current test match area these days before I take all of my guests. So what happened? So let me talk about first Pakistan, South Africa quickly, then Bangladesh and West Indies, and then we can start our discussion with England and India. In Pakistan and South Africa test match, it will be fifth day today, gonna start in a couple of hours. South Africa need 243 runs, and they still have 9 wickets left. We're gonna detail talk about this, that how this chase is gonna be crucial for South Africa test series, and how Pakistan is gonna survive this or not. On the other hand, what is happening in Bangladesh? Totally, surprising result, and I'm definitely gonna take 5 to 10 minutes on this. That West Indies surprised the Bangladesh team. They chased a mammoth total of 395, and the new guy hit 200 plus runs. That's another achievement for him, and that definitely this series for West Indies might give a revolution change in their test series and whatever is happening in their country right now. And what happened in England and India game in Chennai? As we know that yesterday England were 555 for 8, and then they posted a total of 578. And then when India started bad, they didn't like their openers didn't perform well. And now at the end of the third day, India is struggling at 256 for 7, but it's still not there in the dead struggling phase that they might gonna lose or not. So we're gonna start discussion with my guest right now on Bangladesh and West Indies test match, and then we can talk about India and England. Oh, hi everyone. Hello. So we have today Farooq Siddiqui, owner of Sports Trend, Haris Kirmani. Thank you, Haris, for joining. Sultan Bhai, can you please unmute? Hi. Hello. We have Sajjad Bhai, we have Martin, and I have Kaisa Bhai as well. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, so let's talk about West Indies and Bangladesh first, because that result is like change everyone. Because I think, Haris, you were 100% sure yesterday that Bangladesh gonna win, right? Yep. Yet I stayed up. I was planning on staying up the whole night to watch the Pakistan game, but I didn't watch a single ball of the Pakistan game once I started watching the West Indies one. But on which channel you were browsing? I didn't get. I was trying to browse. I was on Willow Extra. Oh, Willow Extra's carrying the game. Yeah. Oh, even I was trying to browse it, but I didn't get a chance. Anyway, yeah. So Haris, how do you rate that victory? How the run chase 395? You never see any other day. Yeah, first and foremost, Kyle Mayer is finally getting his opportunity after so long. He had a great first-class season. To have the highest fourth inning score for a debutant is insane. And it's about the confidence that was going into it. Obviously, once Shakib went out and they were pretty much forced to rely on all of their young spinners to really do the damage,
on a pitch that had nothing in it for the Pacers, even when they took the new ball and the fizz was kind of useless. It was just a battle of attrition and hitting the bad balls away, and the way that both him and Bonner did it was just insane to watch. An incredible win. Okay, so Sultan bhai, I think yesterday you were supporting Bangladesh, right? I mean, nobody supported West Indies because there was no chance, right? So it's understood. I can understand that. I did not fully, but yes, that was what it was leaning towards. Great win by West Indies. I think Haris summed it very well. I can't add more to it, but yeah, Kyle, man, that inning he played as a debutant, unbelievable. And yes, and he's right. That is gonna basically, it's gonna change, or at least foot forward towards a new era of West Indies Test cricket from here on. And they've been at point one of the best teams ever. And in the last few years, it's just in Italy, especially in Test, they have never had a comeback. But this is, I think, this is going to change things for them. Very happy for them, actually. Yes. Martin, did you try to get a chance to watch England and West Indies and Bangladesh, or you were just focusing on India's wickets? Well, I mean, it's a great result for West Indies. I'm very happy for them. They've had such a struggle the last few years. I'm just impressed that there's so many fourth innings winning run chases in the last few years, right? You've recently had India doing it. England got one against Australia. It's really, really good to see, right? Because I think we had a few years there where, anything over 200 in the last innings was just a write-off. But now it seems like people think they can chase anything, which is fantastic. I don't know if anyone know about this batsman that got the double century. I've never watched him before. Even Pakistan was about to chase in Auckland as well in first Test match, but yes, you were right. Like that's why I think the mindset, what is in the root mindset, that he's not going to declare even they cross 500. They want to make sure that they have enough total. But if you think like this Test match, I want to emphasize more, right? Because Bangladesh scored 457 runs. And Sajjad bhai, I want to take your opinion. In second inning, Bangladesh bowled 127 overs, and they only selected 4 bowlers to bowl all of these overs, and they lost the match. If the bowlers are not taking the wickets, don't you think they can bring Shakib as well? And they have all other part-timers as well. They can bowl. Anyone can bowl other than their keeper. I think that's not a bad idea. If you have a part-timer who can keep the line in length, you don't want to pull a part-timer who's going to give quick runs. Of course, in this case, it didn't work. I think that everything that Bangladesh tried, Mayers had an answer for it. And that's what happened. I think Bangladesh tried some good strategies. I watched all the highlights. I watched part of it live, actually. I switched between all the games. But this reminded me of some of those chases that Lara used to perform against Australia, when Australia thought that they were the Avengers or something. When they thought that they were unbeatable, right? And Lara used to single-handedly do this. You don't want to say, "Oh, this is the new Lara." It's like that awful thing to do to any player. But I hope Mayer sticks around and he doesn't, after 5 years say, "Screw this, I'm playing Big Bash, PSL, and IPL and taking the rest of the year off." I don't want him to do that. I hope he stays with the Test team. Sure. Okay. Kasser bhai, welcome to the show. Amazing win by West Indies. As Salman Arshad saying, have a comment on it, please. Thank you very much. It's indeed an amazing win for West Indies cricket as well. For last couple of years, they were struggling. It's a huge bonus, and it speaks of a character of a young, new talent. As other day I said, it's good to see the young guys are coming and performing, but especially for Carl Myers, he's a wonder kid, and what a boost for his international career, starting right at the peak. And there will be so much expectation from now on from him that he has to fulfill. That's one thing. But what I like is, as we always talk, is the fear. The fear of the stats and your name. That was not there. That did not play on his mind. And he is a strong individual, mentally strong individual. So he took
ball mobile on the face. Like, okay, let's do it on a fifth day of this pitch, and especially in Bangladesh, amazing. Hats off. Amazing. That's a new legend, I would say, is born here. Yeah, I like Yeah. what you said, that he was batting in a relaxed way. It was like, just wait till June, July, the way I am going to bat against these Mississauga Dolphins at Malton Cricket Ground. That's how he was batting. Oh, To answer that That's question, a Sajjad bhai. statement, Sajjad bhai. That's a Last statement. night. Sajjad bhai, to be honest, jokes only suits on me. Okay. So, okay. Farooq No, I bhai, was saying, to yes, Seth's Kaisar. question over there on there, because I was researching it last night. This is by far the highest score by a debutant in the fourth innings. It was Abbas Ali Beg for India that made a 112, which was the highest before this. So pretty insane to be able to beat that on debut. Okay. So But that's what I was about to confirm you. Welcome. Yes, Sultan bhai. So is it regardless? I think it's regardless of fourth inning or not. It's just like any debutant who ever scored 200. No. That's still higher. Lawrence Rowe from West Indies made 214. Oh, Oh, so it's a fourth inning, like I think second. Okay, Yeah, that's highest, I think and it's that, also the highest fourth innings on debut in Asia, if you want to get like that. But there's been much higher, like in general. I think it was actually like the English batsman R.E. Foster that made like 287 on debut. That was the highest debut. still of any like First debut inning. inning. So Saf is one good. I mean, good comment on it and good like stats that you are giving to us and our panels as well. Thank you, sir. Okay, let's talk. Amir, welcome to the show. Thank you Surprising for win. having me. Surprising Man, win. that was amazing. That was amazing. I was not expecting that. If you take out that one Kyle Myers inning, you saw that even at the end they were losing wickets. It was going crazy. So good for West Indies because they are not playing with their strength, right? So and sad for Bangladesh. Okay. Okay. That's the Let me beauty. I'm sorry. The beauty of this scenario is that, see, until yesterday we were not even aware of this guy has talent. So in the nutshell, this is how players prove themselves. And when we talk about any talent in Pakistan, when they're given opportunities and whatnot, look at this. Nobody knew overnight. He's a newborn legend, like Kasselbhai said. Why can't our players do that? Yeah, and in the age of the pandemic, where everybody's at home, everybody's watching the cricket, so he's going to be even more popular. Yeah, He's going to be like As I said, Joe. it speaks like a high volume of Yeah. the maturity and the confidence of this young kid, man. Yeah, it's like Joe Erotic when he became famous. Tiger King. Tiger King. Okay, I got it. Okay, let me quick. Yes, Martin, go ahead. I was just looking up. He's almost 29 years old, so not so young, I guess, but young to our eyes because I've never seen him play. But I got to have a look at see what some of his domestic cricket is because that's This last He is year a- he he- was. Yeah, he led Sorry, Adi, go the ahead. he led in Barbados for this last year. I only know because, like I said, in my cricket groups, I have a number of West Indians, and they've been talking about him for at least the last year or two. So cool. From Barbados, he's been absolutely killing it this last year, and that's where he got his opportunity and made it. Martin, I said it. why we I got- said I call Yeah, go him ahead. kid because in front of me he's a kid, sir. No. In front, no. Kasabhai, let me support you. In front of Noman Ali, who got debutant like 10 days ago, he's a kid. Okay, let me quickly take comments on it. Then I will take everyone input on it. Okay, we have good comments. Kashif Khan, thanks for joining. Welcome, MaxJeff host. Good morning. Yes, good morning to you and good evening to Toronto people. Salman Arshad saying amazing win by West Indies. Yes, it's a great indeed win for them. Salman Arshad, I did say that I won't rule out West Indies just yet, and people didn't agree. Super impressed. Yes, Sajjad bhai. Yeah, he's correct. We did rule out West Indies, and Salman Bhai, he didn't. So well done, Salman. Well done, Salman. Thank you, Salman. Lage raho. Salman Arshad, the XP. Sorry. I was just saying, you're gonna have to mitigate it by him also saying that Rizwan isn't it. So you can't just be giving him. Yeah. No, Absolutely. we will talk about later when Pakistan comes up, and then definitely, but because at that time Salman Arshad will be sleeping, so I'm sure Salman Arshad don't sleep at this time, right? But Salman Arshad, I said as a general comment yesterday, I said it every day is a news day, and the history will be made every day, and I could correlate that to West Indians as well. Okay. Well, I think it's what Martin said,
that teams feel more comfortable in the fourth innings. Like I gave England a no chance, and that was only 280. And Butler 280. destroyed the bowling and won that game. Like it's more common that teams are chasing these scores. Sure. Okay, guys, let me quickly take comments on it. Just give me some time. Salman Rashad, the experience of the past always have its shadow. That's why I was never ready to rule West Indies out, especially not one-sided. Ahmed, quickly comment. Yeah, I think we ruled out West Indies win because they were not a strong side, and they were playing in Bangladesh, and they were playing against some experienced players, and these guys are not that experienced. So that's what our comment was coming from. But I think we have seen in the recent past that look at India. They went in Australia and back-to-back win after just literally getting slaughtered for 36, and they won the series. So I think it's a new precedent that these teams are setting. Who is more hungry to win the match, right? So, and that speaks volume for the for the team. Okay, Martin, I want to answer this comment on it or give your opinion on it. Hamadeen, thanks for watching our show. Mayer's first class average is 33, which is rather low. Did you guys see anything there to suggest this, or is just like a flash in the pan innings? I don't think. I mean, yes, please go ahead, Martin. I don't know if anyone else was watching it more than I was. I mean, I didn't really see much of the innings. I was too busy watching England. I just watched the highlights. I didn't see any. I only watched the highlights, but I think from the highlights I saw, he was very confident in his shot. Yeah. There was actually a period. So right after he got his 100, at that point is when, first of all, Bangladesh had taken the new ball, and it was almost like he exhaled and started playing rash shots, and he almost got out literally as soon as he got his 100. And it was at that time where, again, credit to the captaincy, credit to the sidelines actually coming in, and they gave him a long message. It was like a 5-minute talk during drinks break of like, this is just one part of your job. And you saw that he completely reshaped himself after, and him and Bonner were set for the long haul. So I don't think it's a flash in the pan. It was just he knows his game and he played it. He was getting a little, riled up from the moment once he got his 100, but once he calmed down, it was just a beautiful innings. Yeah, because when you score 200 in a big time test match abroad, you've shown something. You have something in your heart and in your mind. And plus, that 200 is the match-winning 200. It's just not a match-saving, or it's just not a first-inning 100. So on top. So yes, it's basically what happens. You can say if anyone wants to say flash in a pan, yes, but for a strong cricketer, it's a huge bonus. Then your career started at this point, and every time when you are not performing, you can go back to look what you did. Your basics were right. You played. He said it like I try to play as straight as possible, and I only try to play strokes on the loose ball. That's what cricket is all about. The batting is all about. Okay. Okay, guys, let me take some comments. Fahad Rao, Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Thanks for joining. Fahad, I want your good comments and good questions from my panelists tonight. Okay, so please. Saif Rizvani, speaking of West Indies, Canadian batsman Nitesh Kumar scored first 100 of the tournament, Super 50 in the first game. I want Farooq Bhai to answer this. Nobody is allowed to answer this. Where is Farooq Bhai? Farooq Bhai, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yes, Farooq Bhai. यार मैं कुछ काम कर रहा हूँ, खैर anyhow. Yeah, good luck to Nitesh. He's a pretty good player. He is a Canadian skipper for last year or so. A very talented guy. So good luck. And he's the only one who is representing right now from Canada in that tournament. There is a Rav thing. He was in Dubai T10. Previously, Rav also went to Sri Lanka Premier League, but he got COVID. So there is a Canadian representation going on all over the world. Saad bin Zafar has a couple of times represented Canada in a different tournaments. Junaid Siddiqui, he was in a training camp for PSL Lahore Calendar. So yeah, Canadian presence is there, but it's glad and it's good work by Nitesh, and good luck to him and for the future matches. Okay. Thank you, Farooq Bhai. You can opt out for next 10 minutes and then you can rejoin me. Thank you. Father of Salam to Martin as well. Martin, he's saying hi, so you can say hi. Okay. He's the Father of the realtor.
He's father out the realtor guy. Yeah, The realtor guy. Salman Arshad, I am wrong about Rizwan. Yes, Salman, we will talk about Rizwan after 20 minutes. Stay tuned. Okay, Mohsin Imran, another. Mohsin, thanks for I think he's he's one of the viewer who's watching and keep asking questions and coming comments on it. Thank you, Mohsin Imran. Can't wait for the Rizwan conversation. Yes, sir. But I mean, right now for next 15 minutes, we are going to talk about India and England. So please, you can ask questions about it. Salman, but I hope Rizwan is a long-term solution. Stay tuned. Okay, let's switch to Chennai. By the way, England got 10 more tests and Joe Root already with 600 runs. Mohammad Yusuf record might be broken this year. Yes, Martin? I hope so. I mean, he's on his way, right? Like, who have we got next? I mean, the good news for him is the next test series, I think, is against India. Or maybe the one after next. New Zealand and then India. At home. A lot of home against India. So I don't know. Maybe Joe Root's actually better batting overseas at the moment. But that should be another good series. He's got a good chance of breaking that record this year if he keeps going as he is. Yes, Sultan Bhai. Let's talk about what happened in third day. England were like 578. The way Archer, I think you were praising Archer yesterday as well. Like he's going to perform and he did it, right? Mm-hmm. So what about the Kohli? I mean, he's not up to he's just coming back after like 2 months off period. What do you think? Like, just quickly comment on Kohli innings. Yeah, cricket. See, the thing is, first of all, yes, Archer did take both the openers out, right? So that is what his role was, and that was the key that England had against India for this Test match. Kohli, yes, he's coming back. It's the first game after you've seen that same thing happen to Babar Azam for the first time when he came back. You know, sometimes you get little out of form, but he's kind of player. He's gonna bounce back very quickly. So no fears there. But relatively for this Test match, yes, his performance was required because England has imposed a mammoth score. Although this is a batting pitch, but again, like I was saying yesterday, England has put themselves in a very strong position. Now it's the bowling who's going to define the rest of the Test match, and that is exactly what is happening. When they come back, if they get them out under or maybe around 300, England has a very good chance to even win the match. Sure. Kasabai, Father of the Realtor saying sleepless night after newborn for Kohli. Could be, but as I said too yesterday that Archer will be a difference, and he made a difference. And coming to Kohli, if you see, I would say it was kind of the same dismissal as Babar got it too. He played for the spin, and the ball didn't spin. And what I like the most is the flight and the time. The English spinner gave it to all the batsmen. It was huge. Like for a real spinner I have seen after a long time. Like he has the confidence. He had the confidence to give that much air to the ball to do something. It was really, I enjoyed us watching that kind of spin after quite a while. Yeah, I was gonna ask Martin because he was talking. We're talking about Jack Leach being almost like their proper spinner coming in, but in the end, it was. Dom Best really showed his evolution to his spin, and I will say that goalie ball did. It was sharp turn, sharp bounce to get that short leg catch. So I was really impressed by Dom Best. Yeah, it's almost like he finds a way to get wickets, even though he's. I was reading a bit about it. He was, he bowled like 10, 12 full tosses and dragged 10, 15 short, and Jack Leach put everyone on the right line, and one guy got 4 wickets and the other guy got none. So, it was he seems to find a way to make it his day. The way he got Pujara out was just lucky, and then Rahane's was a little bit lucky as well off a full toss. Good catch. It's not. I don't think so. It's a lucky, but it's a very good Test match catch. Those catches turned the game. And that's what England did, is they took their catches yesterday. So apart from Archers at the end, they everything went their way. So yes. I don't know if it will continue to go that way. Sajjad bhai, Tom Bass, don't remind you like a little bit of glimpse of Graham Swan, he's bowled with while wearing sunshades and everything. Yeah, and also he reminds us in the sense that
Swan, even when he didn't have that much experience, Swan always wanted to try stuff. And Swan had a swagger and a confidence in himself until his last series. Like, I don't remember Swan ever bowling a majorly bad spell. He was always in the game. But the thing about Bess is, he did this against Sri Lanka as well. He doesn't look like he's going to pick up a bunch of wickets, but he does. There's something about his bowling. I think there's something off-putting about his action. Maybe he's just new, but he just knows, he just gets those wickets. Sure. Okay, Amir, do you still think that this test match is, I mean, what do you think? I mean, yesterday I think you said that this match has no result, right? What do you think? I said if I put my money, I would put it on India. I'm not sure anymore. I think England bowled very well. I think that's the beauty of Test cricket now. I think the World Test Championship has brought the best in all of these Test nations, and the competition is heating up. And I think England, Australia, India, they all are going to try to get into the final with New Zealand. And I think this is why you're seeing these kind of performances, right? Okay. So Sultan bhai, what do you think? Let's talk about 6 wickets down, and they are like around 257 for 6, and they still need 321. I think 21. Follow on is for like 121 runs required, or 21 runs, 200 left or 300 left? 120. 120. So Sultan bhai, do you think that India might get like a follow on? Yeah, there's a possibility. But I think that's not going to happen. I think they would go for bat and put some 400 plus lead and then try to get them out under that. And that's the only chance to win. Otherwise, it can lead towards drawing. So you are saying that England has to bat again and put a total of around 400? Do you think that this test match has that time left? To secure. No, because what is going to happen, but I think right after they start the day, they're gonna get them out under 300. India, if they get like Washington Sundar, then pretty much everything down their road it's not a strong batting left, and then probably they will play until tea, and then have them come and try to knock them out under 400. Okay. I think Go if they get follow on, they're gonna make them bad again. 100%. Because if England gonna bat it, I mean, Haris, what do you think? If England gonna bat, this test match will be draw for sure. What do you think? I mean, first of all, I still have it as a draw, but I think it all depends on how quickly they're able to get it out, because there's 74 overs into this innings now. If you get to like that 100, 110 over period before you get them out, England might think twice about enforcing that follow-on. Give their bowlers a little bit of a rest while they go out and score some quick runs to really put India under that fatigue. Before they go out and actually do it. And you find England has done that quite a bit. Like, they're not always the ones to enforce the follow-on. They like being able to put those runs on the board and then come out with that scoreboard pressure. So I was thinking they may be looking. Sure. Martin, I'm giving you an equation. For example, if India bowl out before tea or by lunch, do you think that by lunch and England have a lead of around 250 something? They have an option to do a follow on, or they don't. Do you think that they're gonna like force a follow on to them, or you think that they're gonna come and bat and like hit a like quick fire 100 150 runs and put a total of 450 for one day for India? It's a great question. It's what I've been thinking about all day. Is what do you do? Do you enforce the follow on or not? My opinion would be enforce the follow on, because if England choose to bat, it's going to be very difficult to decide what's enough runs, and that might cost them a long time in the field. I don't know if they can, like, you've seen how India have chased down 350, 400 recently. Rishabh Pant looks in very good form. If we only bat for a little bit and then set him only 400, 450, I just think there's too much risk there. I think but there has been some good points raised here about previous matches. England are reluctant to use the follow-on, but I would love to see them go aggressive and use the follow-on and give it a go if we can get them out. So for Sultan, Sajjad, Kaisar and Ahmed, so we have 2 comments on it, right? One, Haris saying that England
will not enforce a follow-on, and they will take some rest, giving a bowler rest, and they will come back again. And Martin is saying that they should go for a follow-on. So what you like go for? Four of you guys think about it. Like which one is? Any opinion on those two equations? I would say the only fear for England is the batting fourth inning if they force a follow-on, and if they have to chase 160, 70 plus runs, that'll be, it'll be a matter of it'll be testing them. So, but what they can do is just my own observation. Do not force the follow-on, but bring Joe Butler right at one end, open, and have a good 150 plus 175 runs to make it to somewhere around 375, 400 runs, and give it a go. Is this your wish list, or is this you think that is your opinion? I would say it's my observation that England doesn't have anything to lose here, and to bring back Joe Butler as Rishabh Pant, they should do this. Trust me. They should. Amir, what do you think? Which option, which equation you gonna take for in this scenario? Yeah, I think I would agree with Sultan Bhai. I think I would put them to bat. I would put England to take bat, not enforce the follow on, and then just add to the total, and then let them chase it. I think fifth day is always crucial, and you see, if they use the spinners correctly, maybe they would be in the money for winning the match. Sure. Okay, so Sajjad bhai? I think that they're going to enforce the follow-on. So they don't want to bat. They don't want to bat again, and you know what? If things don't go their way, that's okay. They'll have a draw. But when you don't enforce the follow-on, then all of a sudden you have to do mental gymnastics to try to figure out what to do. And Joe Root comes from a more conservative line of thinking, I think. Not as conservative as Misbah, though. Go ahead. Are you done, Sajjad bhai? Okay. Now, my 2 cents is like, why not follow on? Definitely follow on, because and they have batted for 2 days, so they rested 2 days. Their bowlers are in the field only for like one day, probably, right? So they're gonna force India on their knees, right? And their tails are up. They'll go for the follow on, definitely, if they get the chance. There's like, why do you want choke somebody to the neck and then let them go? No, they go for the follow-on. Okay. Guys, allow me to take some comments on it quickly. Mohsin Imran saying, what changes will India make for the next game? Guys, quickly one comment. Haris, do you see a change? If change, what one change? Yeah, I mean, I'm still of the opinion that Kuldeep Yadav should have played this last test over Shahbaz Nadeem. Shahbaz Nadeem. Okay. Sultan bhai? I don't see any changes in the next test. You don't see any changes? Sajjad bhai? No, I don't see any changes. Martin? Yeah, I think they'll change. They won't have 3 spinners. Amir? Yeah, I think they would change, and maybe they would give a rest to one of their fast bowlers as well, because there's a lot of criticism on them for not playing Siraj. Not playing Siraj. Sajjad bhai, I was surprised you didn't mention the name Siraj. I mean, is your love over with him? No, it's the same. It's the love of Kohli that he needs. Kohli's a hard-headed guy. Like, if there was ever going to be a Sith Lord in cricket like Darth Vader, it was Kohli, right? But let me remind you, Siraj I think he's from Bangalore, right? He played RCB. The Kohli is the one who brought Siraj. Can someone make me correct here? Yes. But only one, I think it's only 1 year, right? 1 year. Only 1 year. Kaisa bhai, quickly, do you see a change? I think Siraj, they might gonna give him a chance. Sure. We have Arslan bhai here. Arslan bhai, assalamu alaikum and welcome to the show. I think you are on mute, sir. Assalamu alaikum, everyone. Hi, Martin, Sultan bhai, Farooq bhai, Haris, Sajjad bhai, Kaisa bhai, Amir. I've been watching the show. Yes, I know you are following a show. You are so I know you have 2 qualities. One, you are my fan, and second, you know 2 people here, which is in this. Can you mention those? Can you introduce yourself and mention those 2 names? I know you are my fan, so you don't need to mention.
Yeah. My name is Arslan, and I'm by profession I'm a Indian immigration consultant, based out of Milton, Ontario. So I bring a lot of good people to Canada. Okay. So that's what about those? So that's your introduction, right? The what matters to us? Name those two people that you know here. Gee, Kesar Chaudhary is here. The legendary Kesar Bhai here is here, and the our great cricket technician Sajjad Bhai is here. Actually, what happens is that we have a lot of arguments in WhatsApp with our childhood friends, and that's Arslan is there, and we generally prove them wrong. And so they nicknamed him the Karachi technician. Karachi technician. So we're gonna talk about some more about. I will take more input from Arslan Bhai definitely when we are gonna talk about Pakistan and South Africa series. So guys, quickly, last 3 questions on England and India. Then we're gonna talk about 20 Test match. Starting from Haris. Haris, what's the game plan for England in this first session? I mean, go for the kill. Of course, you have to go for the kill, especially because players like Ashwin have a history of doing quite well against England. I mean, he averages about 40 with the bat against them. He's consistently been a thorn in their ass when they're going down the tail. So it's all about getting those wickets early. And if you do want to enforce that follow-on, they have to try to get India out within 20 overs. That's their goal, in my opinion. That's a goal. Sultan Bhai, game plan for India. Yeah. England. Sorry. Yeah, I would agree with the Haris, and like I said already, the chances of draw is more if they impose the follow-on. So that's the only thing, because India has been scoring high, especially last time they met against England. So they're probably going to have this in the mind, but it comes down to the captaincy, that if he's aggressor captain, he wants to win this, he's going to go like Kasselbhai mentioned, some quick hitters like Ben Stokes, Butler come up, score quickies, and then just have them over 400 and let them chase and try to win out of it. Okay, Sajjad Bhai, quickly. You know what? Archer had better bounce that ball quick and hard and get those guys quickly, because he's their trump card, along with Don Bess. He's the one that they're depending on, and he has to bowl aggressively. When it comes to Jimmy Anderson, I would say just put cover mid on and try to swing that damn ball. Just pitch it up and swing that ball, because that's his strength. Sure. Okay. Martin, can you answer this? England may not want. I mean, you can put your opinion. England may not want to bat last on this pitch. Yeah, I mean, there's obviously a split opinion on the panel here of what the best approach is. I mean, you don't have to bat last if you bowl them out again before they reach your total. So, I mean, it depends. I don't know. I would like to see them follow on, be forced to follow on and bowl them out, especially if they can get them out cheaply this morning. If they can get them out with a lead of 300 still, then they've got tons of runs. If you only score 300 in the first innings, now you got to get over 300 in the second innings, then you won't have to bat at all. So that's what I'd like to see, but I don't know. I also have the same split opinion as everyone else here. Who knows? Okay, my favorite question for last 48 hours. Tom Brady for England, starting from Sajjad Bhai. The Tom Brady for England? It's Bess. Yeah. Bess. Okay. Ahmed? Maybe I should say Root, but I like Bess as well. In the situation that England is in, I think I would agree. Tom Bess. Yeah. Okay. Kasser Bhai? It's Jofra Archer. Sultan Bhai? Bess, given the situation and his performance in this match. Okay. Farooq Bhai? I'll pass. Pass? Is that because you're married and you pass at home? I don't know. I'm just saying it because they will definitely do the follow-on if they have to, because then it's then the ball will be on India's court, right? How they will react to their follow-on situation, and if they want to retire, declare the inning or not. So England is safe if they force the follow-on, because either they will draw or they will win. Losing will be, I think, it'll be the worst thing on the current situation for England, but I don't think that's going to happen. Cricket is a funny game. I want to add on something. If you see the pattern from last 10 collective test matches, the first hour of every morning is very important.
if England got a couple of good wickets, quick wickets in the morning, it will be a huge. This test will gonna go towards a good result. If they are unable to pick the wickets in first hour or so, I tell you the batting will gonna be dominated. Okay, Martin, quickly, Tom Brady for England. Well, I'd like to say Jack Leach cleaning his glasses and bowling, getting a fifer in the second innings. But I'm thinking, when things get tough, Ben Stokes usually shows up. So I think a few wickets from Ben Stokes here could really change things around. Yep. Okay. Yeah, I would still say, I think Leach might play a better role in third inning when India is gonna bat second time. Okay, guys. Last question for the night for the Chennai game. Is England winning? Yes, no. Starting from our own favorite, Ahmed. Is England winning? Yes. I don't know. I don't think so right now. Don't say mind or hurt. Like, we don't have any doctor here. You're banning my most famous. No, I'm not. man. I'm not banning. I'm not banning, but I'm requesting you please answer yes or no. Okay, but in the spirit of what has been happening since the past 1 month, I would say okay, England can win this. Okay, MWF. I have two questions for you. A. Where were you? No, where is MWF? Again? Where is MWF? Again? Guys, look, this hype is gonna create. That's why Farooq bhai, I was not taking him. I want to create more hype, right? But you took it. Anyway. MWF quickly. Then we need to talk about Pindi quickly. Do you think England is gonna win from here or no? England should. Should. Sultan bhai. Look, if J. Root goes aggressive way, England will win. England will win. Sultan bhai, Sajjad bhai. No, I don't think England can win because India will bat very well in the second innings. Sure. Arslan bhai. If there's a follow-on, it's an uphill task for India. Uphill task for India. Kaisa bhai. Batting side, but still. Sure. Okay. Kaisa bhai. I really don't see a result here, but a good batting practice for England could be set the momentum for next day. Sure. Martin, what did your mother and your brother said earlier today for this test match? Share those opinion. I don't need your opinion. Yeah, I mean, I think they share my opinion that probably gonna be a draw, but I think England can win. Okay, but they are still hoping that England might turn the table in this test match. Oh yeah, I mean, all the pressure's on India now. All the pressure. Who agreed this statement? Don't you think might be the same thing like what happened in Australia, England, India were one-sided lost in first test match, then they came back and win by 2-1. Do you think the same scenario? Yes or no on this, Haris? No, a draw is confidence building for England, but it's going to be a draw. It's going to be draw. Martin, do you think that India might come hard in second test match, which is going to play in Chennai and then 2 Ahmedabad tests? I mean, sure. I mean, they're at home. They're meant to be best team in the world. But here we are. So I don't know. How can you come any harder? I think they played their best team. So I think that any result from now from England, I don't think they can lose it. So they got to be happy. But I think they need to push for a win, make this because they're not going to get many chances like this to win. So they have to make sure this turns into a win. Okay, guys, I think we need to talk about Pakistan and South Africa test match. I think we have covered this Chennai test match. Thank you, Martin, for joining us. Definitely we will touch base what happened gonna happen today and then touch base tomorrow for sure, for quickly, maybe half an hour, because I think Pakistan test match gonna be see what is happening tonight. Okay, Martin, have a good night and then thanks a lot. Right. Have a good evening, everyone. Good night. And Good luck. Good luck. Good luck. Okay. Sure. So, okay. I want to say, मैं सबको सलाम पेश करना चाहता हूँ अपना.
मैं पीछे वालेकुम अस्सलाम। फिर उससे बैक स्टेज पे कुछ देर के लिए था, तो मैं अब वापस स्टेज पे आके सलाम कहना चाहता हूँ सब। चले स्टेज पे आ गए हैं। स्टेज पे हमारे साथ एक नया चेहरा भी मौजूद है, अरसलान भाई थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे, क्रिकेट के मुतालिक अपना इंट्रोडक्शन दे। आपको क्या मतलब, क्या आपकी पैशनेट, क्या आपको ब्रिंग किया कि यार चलो आज मैं शो में आता हूँ और आप सबसे बात करते हैं। और अरसलान भाई हमें आप कैमरे की तरफ देख लें, स्क्रीन को छोड़ दें हमें। जी, जी, जी। हाँ ये अब सही लग रहा है, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। तो उनको छोड़ दें, हम लोग सही लग रहे हैं। क्रिकेट का ऐसा शौक है कि कुछ हमारे प्लेयर दोस्त हैं, उन्होंने मेरा नाम रखा हुआ है कराची टेक्नीशियन, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं कराची का हूँ, तो मैं सीमेंट विकेट्स पे खेलते हुए आया हूँ। तो आप कराची के तो हैं, आपने मुझे यही तो बोला है। जी जी, तो वो अपना नाम रख दिया कराची टेक्नीशियन, सीमेंट प्लेयर है ये। अच्छा, ओके। तो आप यहाँ पे आपने खेलते हैं यहाँ पे टेप बॉल वगैरह, या सिर्फ व्हाट्सएप पे खेलते हैं? नहीं, यहाँ पे टेप बॉल खेली थी, वैसे नहीं खेली। मिसलागा डॉल्फिन्स ज्वाइन करने की बड़ी कोशिश करी थी शुरू में। ये कब की बात है? ये 2015 की 2015 की बात है यार। उस वक्त ना कैसर भाई थे मैनेजमेंट में, ना मोहम्मद फजाद फैजान थे, तो मैं मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता। कैसर भाई मैंने आपको कवर कर लिया है। था तो सही, लेकिन मैनेजमेंट में नहीं थे उस वक्त, इतना ज्यादा वो नहीं था, इन्वॉल्व नहीं था। अदील को नहीं पता था आपके बारे में। चलें क्विकली बात करते हैं पिंडी टेस्ट मैच के ऊपर, स्टार्ट करते हैं। यार एक तो ये सैफ रिजवान, तुमने दोबारा एक जंग छेड़ दी है वर्ल्ड है। ये रोजाना ये 5 दिन से ना, ये जो है ना, क्या बोलूं इसको मैं, ये लिख के रखा हुआ है, उंगली कर रहा है। ये उंगली है या उंगल है, ये क्या है, ये मुझे नहीं समझ आता। इसका एक लाइन का जवाब ये, आधी बात तो सच है, बाकी बात है रुसवाई की। भाई ये सैफ रिजवान, ये वही अभी जो तुम MWF सजाद भाई, चले अरसलान भाई से ले लेते कमेंट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप डू यू सी, आई मीन न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का देख रहे हैं, या न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया या ऑस्ट्रेलिया का देख रहे हैं? न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। कोई और एग्री करेगा इससे? क्योंकि और इंडिया जो है और वो न्यूजीलैंड, आपको बताऊं, न्यूजीलैंड will win the Test Championship. I said Pakistan played his cards good, so New Zealand is in. कल वो बहुत लंबी बहस हो गई, अपनी आज करनी उसके ऊपर। ओके, अरसलान भाई क्या कहेंगे? आज आपने पाकिस्तान की जर्सी पहनी हुई है, कल का दिन आपको देख के लगा कि ये जर्सी आज आपको पहननी चाहिए थी? देखिए, अगर यासिर शाह ने 0 for 200 वाली बॉलिंग करी तो नहीं पहननी चाहिए थी। क्या नहीं करनी चाहिए थी? अगर यासिर शाह ने 0 for 200 वाली बॉलिंग करी, ओके, तो फिर तो ये गलत डिसीजन हो जाएगा, फिर जर्सी पहन के नहीं आना चाहिए था। ये बाद में पता चलेगा मैच के, आज रात को। सही, चलो MWF सही, इन पे MWF थोड़ा अच्छा बहुत डिपेंड। MWF थोड़ा मेरी हेल्प करो, थोड़ा सा रिकैप कर दो क्या हुआ चौथे दिन। चौथा दिन जो था वो पहले 2 सेशंस तो रिजवान के नाम रहे। सर रिजवान, फरूक भाई किधर हैं? सर रिजवान प्लेड रियली वेल, बहुत गट्सी इनिंग्स खेली। और जो फहीम अशरफ की पहली इनिंग्स की गलती थी कि वो टेल को सारा एक्सटेंड नहीं करा सका अपने साथ, वो रिजवान ने वो गलती नहीं की और टेल को अपने साथ लेके चला। बल्कि आपने देखा कि टेल को भी शॉर्ट बॉलें खेलना आई। आपने नोमान की शॉटें देखी। मैं यहाँ पे खास तौर पे जिक्र करना चाहता हूँ यासिर शाह की इनिंग्स का, क्योंकि वो पिवटल पॉइंट था, प्रेशर पॉइंट था पूरे टेस्ट मैच का। अगर यासिर शाह वहाँ पार्टनरशिप ना लगाता रिजवान के साथ मिलके, तो पाकिस्तान बड़ी जल्दी 250 से अंदर जो हम कल बात कर रहे थे, पाकिस्तान आउट हो सकता था। लेकिन पूरा क्रेडिट जाना चाहिए रिजवान को, बैट किया और अपने क्रिटिक्स को साइलेंट किया। पूरा ड्रेसिंग रूम जब खड़े होकर एक प्लेयर के लिए तालियां बजाए, तो इट शोज कि उस प्लेयर ने अपनी रिस्पेक्ट जो है वो ग्राउंड के अंदर अर्न की है थ्रू इस परफॉर्मेंस। तो रिजवान उसके बाद पाकिस्तान ने लैक लस्टर बॉलिंग की। ऐसा महसूस हुआ कि वो रिजवान के ऑरा में मौजूद थे कि हम अब मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं हम। लेकिन ये बात अब डे 5 पे पता लगेगी कि किस में जान है। साउथ अफ्रीका के लिए 370 का टारगेट साउथ एशिया में करना वैसे ही एक साइकोलॉजिकल इशू है, मगर उनकी बैटिंग को दाद देनी चाहिए जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया। या मेरा एनालिसिस ये है कि ये मैच इस वक्त 2 प्लेयर के लिए सेटअप हुआ हुआ है। 2 प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए स्टैंड अप कर सकते हैं। आपने नहीं चुप नहीं, मैं कह रहा था कि अभी से अभी 4 डे की बात करो तो मैं फ्यूचर पे चले गए। फ्यूचर के लिए अभी मैं आना चाह, अभी करेंगे बात जी। आखिरी सेशन की जिस तरह अगर हम मैं उसको कंप्लीट कर दूं बात, तो आखिरी सेशन में मुझे हसन अली की बॉल में थोड़ा सा रिवर्स महसूस हुआ, मगर जो पहली इनिंग्स में जिस तरह हसन अली रिवर्स कर रहे थे बॉल, वैसा नहीं नजर आया। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि अगर आपने कवर, मिड ऑफ और पॉइंट तीनों के फील्डर देखे हो तो वो नए लड़के थे।
वहां बॉल शाइन करने वाला जो टीम में जनरली बॉल शाइन करता है, आबिद अली मिडॉन पे खड़ा हुआ था, आपको लड़के नजर नहीं आए, तो बॉल शायद हो सकता है पाकिस्तान ने अच्छी तरह टेक केयर ना की हो, जिसकी वजह से हसन को रिवर्स नहीं मिला। और यासिर शाह, मुझे नहीं समझ आता कि नौमान के होने का वो प्रेशर ले गए अपने ऊपर या क्या, क्योंकि यासिर शाह बिल्कुल अपनी पिच मैप अगर आप यासिर शाह का देखें तो उससे बहुत बेहतर बॉलिंग लिंडा ने की है और महाराज ने की है। सही। मैं ये बोलूंगा कि आपका देखें मैं सिर्फ ये बात बोलूंगा कि देखें लॉयर होने का फायदा ये है कि कुछ भी हो जाए, एक उन्होंने एक अच्छा सेव दे दिया कि भाई वहां पे अच्छे फिल्टर खड़े हुए नहीं थे, एक्सपीरियंस, उन्होंने बॉल शाइन नहीं करी तभी रिवर्स स्विंग नहीं। फारूक भाई क्या कहेंगे इस कमेंट के बारे में? मैं ये कह रहा हूँ कि ये वजाज जो बातें कर रहे हैं, तो कल के लिए हमने ना बड़ा सा, हमारी ग्राफिक टीम ने उसने बड़ा सा आज का पोस्टर बनाया, तो जो आज के जो पोस्टर है ना, तो सब कह रहे हैं कि रिजवान Rizwan's 100 is for critics or it's for the country, ठीक है, लग गई बारात। और जो फिर क्या है ये मार्करम जो है भाई, हमारा मार्करम, इनने काउंटरअटैक किया तो नीचे भी लिख दिया है कि लग गई बारात, तो लग गई बारात। इससे हम अरे भाई आप इस बात को अप्रिशिएट करें, आई वाज द ओनली वन जिसको मैंने कहा था कि हमारी टीम का एक ही टॉम ब्रेडी है इस वक्त, और उसने प्रूव किया आज चौथे दिन। हम 4 पहले टेस्ट से भी पहले जाएंगे तो मैंने तो ये कहा था कि सर रिजवान सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे हमारे इस सीरीज के अंदर। लेकिन ये बात हैरत की बात है, पूरे पैनलिस्ट को सोचना चाहिए कि एक जुमला कल आया है हमारे होस्ट की तरफ से और वो हकीकत बनता जा रहा है। एक जुमले में उसने 3 कैरियर लगा दिए पैसे भाई। चले भाई, चलो अभी आते हैं अभी तुम होस्ट को तुम बीच में लेके आते हो, अभी होस्ट लेकर आएगा तुम्हें साइड में। रिजवान कह रहे हैं रिजवान सक्सेस मींस एंड ऑफ सरफराज कैरियर। क्विकली कैसर भाई एंड सजाद भाई ऑन दिस। नहीं यार, it's too harsh to say that. Pakistan PCB has to think how to compensate and how to take both together. बट कैसे भाई 4 डे का टेस्ट मैचेस कराएंगे सरफराज के लिए, मतलब आप क्या समझते हैं कि आई डोंट सी ही इज गोना प्ले फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स? यही तो मैं कह रहा हूँ कि देन पाकिस्तान, ही इज अ गुड प्लेयर, इसमें कोई वो दूसरी राय नहीं है। ही इज अ गुड कैप्टन, ही वाज अ गुड कैप्टन, ही इज अ गुड प्लेयर, he is a good team member as well, that you have to remember. अच्छा, so नहीं बोलिए, कंप्लीट कीजिए। तो उसमें जो वर्कलोड है ना, देखिए अब पाकिस्तान में अगर क्रिकेट स्टार्ट हो गई है तो वर्कलोड काफी ज्यादा होगा पाकिस्तानी प्लेयर्स पे, और स्पेशली अगर रिजवान इसमें एज अ बैटिंग भी लेके आ रहा है जिस तरह वो कर रहा है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पीसीबी को। सही। मैं ये बोलूंगा इस स्टेटमेंट से कौन एग्री करता है वो कमेंट करे, कोई है इससे? यार मैं एक बात ऐड करूंगा, मैं सिर्फ एक बात ऐड करूंगा, रिजवान ये सरफराज को जिस दिन बॉल चमकानी आ गई ना तो वो आ जाएगा टीम में। सरफराज को और जरूरी नहीं है नहीं, मगर मजाक है। रिजवान ने ट्वीट मारा था जैसे उसने 100 के सबसे पहले गले उससे लगा था सरफराज, राइट, द फर्स्ट गाय हु इज एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर हिज थिंग। और जैसे कैसर भाई कह रहे हैं ये कंपटीशन अच्छी बात है कि यू वांट दैट, यू वांट देयर लाइक राशिद एंड मोइन वाली बात शुरू हो गई है। लेकिन वो क्लास दोनों में वो नहीं है जो उन दोनों में थी। और आमिर की बात को सिर्फ कहूंगा कि मेक श्योर ये करना है कि बॉल जो है क्रिकेट वाली ना हो। बस मैं एक बात बोलूंगा कि MWF देखो अभी यहाँ पे दोनों की फाइट जो चल रही है ना, मतलब फाइट इन अ प्लेस 11 बैटिंग की वजह से है। राशिद और मुइन का था कीपिंग की वजह से। they were never a batsman wicket keeper, right now they are a batsman wicket keeper, so I think agree। चलो नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। तो कोई भी नहीं एग्री कर रहा है इस स्टेटमेंट से? मैं तो कर रहा हूँ, कोई कर रहा है? नहीं, टेस्ट मैच की बात कर रहे हो या ओवरऑल ही है? मतलब यार ओवरऑल मैं बोलूंगा टेस्ट मैच में आप फिर शायद कर सकते हो, ओवरऑल तो हो गया है। T20 में वो आ जाएगा। नहीं, मजर टेस्ट में भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर रिजवान को खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होगी तो फिर आप बेंच से अलग चीज है ना, लाएंगे ना, दैट्स अनदर थिंग। और फिर अगर सरफराज परफॉर्म करते तो फिर क्या करेंगे आप? यू नो, वाइस कैप्टन है आपका। अच्छा, छोड़ो, ओडीआई ओपनर कौन है? मैं तो लगता है कि सरफराज अभी तक हमारा ओडीआई ओपनर करने आ सकता है। नो, एक तो ये नई कन्वर्सेशन है, इज आउट टू लंच, तो कौन आ रहा है? मैं दूसरी एक और भी इसमें मैं एक और दाना भी फेंक दूं। रोहित नजीर जो है ओपनिंग बैट्समैन एज वेल। जी अरसलान भाई आप कुछ कहेंगे कराची बॉय के बारे में, कैरियर एंड? और देखिए T20 में तो जगह बनती है सरफराज की, T20 में तो जगह बनती है सरफराज। आ गया आपका एक और कराची बॉय आसम खान। हाँ, अकोमोडेट करना पड़ेगा। देखें कहीं ना कहीं मुझे लगता है आजम खान में टाइम लगेगा। अभी मैं कल भी मैंने कहा था ये विनर है आपका।
मैं एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ। अगेन मैं एक शो में एक बहुत बड़े लाइनर मारता हूँ। आज का जो एपिसोड है के नहीं वो एक अलग बात है। वो तो वो सच बात होती है। ये थोड़ा मजाकन बात है कि पाकिस्तान टीम ने ना 11 कीपर खिलाएंगे और आप लोगों की सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। तभी रोहिल नजीर भी होगा, आजम भी, सरफराज भी। चलें भाई, ऐसे चाहिए आ गए मैदान में। कैन यू टेल मी हाउ द विकेट इन पिंडी हैज फ्लैटेंड? डे 5 इज लुक लाइक डे 2। या सुल्तान भाई रोल किया ये सही कह रहा है। और ये सरप्राइज मुझे भी है क्योंकि पिंडी की विकेट जिस दिन डे 1 में दिखाई थी इंतहाई ड्राई थी। क्रैक्स लाइक अ वेब ऑल ओवर द प्लेस थे। मुझे तो लग रहा था कि ये थर्ड वीक के लंच के बाद ये विकेट खुल जाएगी, क्लियर हो जाएगी और स्पिनर्स की हेवन बन जाएगी और देयर विल बी अ गुड स्ट्रगल अगेंस्ट देम। डजंट लुक लाइक। मेरा ख्याल है उसकी वजह ये कि हो सकता है उन्होंने थोड़ा सा उसको वेट किया हो, जिसे वतर कहते हैं, लगाया हो। और मेरे ख्याल में रोल उन्होंने जरा हार्ड उसको किया ताकि जो क्रैक्स अपना देखिए क्रैक ऊपर से टूटता है और अगर उसको हार्ड रोल करो तो फिर बैठ जाता है। तो उसको तो अगर लाइट रोल करेंगे तो नहीं होगा। और मेरे ख्याल में जो क्लीनर्स हैं वो भी इसको बहुत ही सिर्फ हल्के ब्रश से कर रहे हैं ताकि वो और ज्यादा डिटीरिएट ना हो। तो ये थोड़ी मोटी टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से उस रिटेन कर गई है। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि पहले डे जो सब ने एकदम सरप्राइज एलिमेंट लिया कि वो बिल्कुल भी पेसर को सपोर्ट नहीं करती। हिस्टोरिकली इट्स ऑलवेज अ पेसर हेवन। तो उस वजह से मेरे ख्याल उन्होंने वर्क किया उसके ऊपर। ये सही कह रहा है। लेकिन सुल्तान भाई जो पिच होती है ना, जो रोलर जो होता है वो बैटिंग साइड लेती है। जी रोल है तो आप उसको पहले दिन जो है वो तो उन्होंने जो भी किया था ग्राउंड में ने बनाया था, उसके बाद जो भी रोलर लगता है वो बैटिंग साइड का होता है। तो साउथ अफ्रीका भी देख रही है कि वो किस तरह लेके जा रही है इसको इनिंग को, तो उसी हिसाब से रोलर ले रहे हैं वो लोग। हाँ, मीडियम रोलर लिया तीनों इनिंग्स में। हैवी रोलर नहीं लिया किसी ने। नहीं अच्छा, आर यू श्योर फैजान? जी, माइक हेजमन ये कल कमेंट्री में बात कर रहा था कि 3 रोलर्स हैं और तीनों जो टर्न पे हुआ है वो मीडियम रोलर लिया है, किसी ने हैवी रोलर नहीं लिया। एक्चुअली ही सेड कि अगर पाकिस्तान डे 3 के एंड पे कहीं लीड आपकी 200 के करीब होती तो शायद पाकिस्तान कुड हैव बीन एंटाइज्ड टू गो फॉर अ हैवी रोलर, क्योंकि फिर क्रैक्स खुल जाते हैं। हैवी रोल से क्रैक्स खुल सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। सही। मैं इसे ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि माइक हेजमैन 14 साल के बाद पाकिस्तान आए हैं। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। मोहसिन इमरान कह रहे हैं, आई थिंक if Pakistan doesn't win today, Yasir will be out 4th innings. Day 5 pitch is supposed to be his strength. आमिर? यार मुझे लगता है कि बॉलिंग जो है वो अच्छी ही कराएगा पाकिस्तान, इसमें आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। मौसम भाई, पाकिस्तान ने बॉलिंग करानी है, फुल दिल गुर्दे के साथ करानी है। और नौमान ने अच्छी बॉलिंग कराई। हसन अली से एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो बहुत ओवर पिच करा रहा था बॉल और उसको चौके भी इसलिए ज्यादा पड़े। 5 के इकॉनमी रेट से वो रन दिए हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने करानी है, फुल जान लगा के बॉलिंग करानी है। आप फिक्र ना करें, ये इंशाल्लाह आप यासिर के बारे में क्यों नहीं कमेंट कर रहे हैं? मतलब आपका भाई यासिर भी अच्छी बॉलिंग कराएगा, पूरा बॉलिंग यूनिट अच्छी बॉलिंग कराएगा, आप देखिएगा। यासिर के खिलाफ क्यों? उसने 11 ओवर में 21 रन दिए, 3 मेडन है उसके। तुम लोग जान को आगे उसके भाई। और वो लेग स्पिनर है। लेग स्पिनर को पता है कि दुनिया में कहीं भी ब्रेक कर सकता है अगर वो थोड़ा सा इंसानों की तरह गेंद करे तो। लेकिन यासिर भाई पठान है, उनके बारे में कुछ कहना है? सही बात की जी। अरसलान भाई, कुछ आपके दिल में बात है यासिर के बारे में या आप भी सेफ खेलेंगे आमिर की तरह? नहीं, यासिर को बॉलिंग करनी पड़ेगी, पिच सही करनी पड़ेगी, अपनी लेंथ ठीक करनी पड़ेगी, वरना फिर बहुत बड़ा हमारा असासा है वो, और वही हमें मैच जितवा सकता है आज का। यासिर भी असासा कहेंगे ना, वो भी बाहर हो जाएगा। असद शफीक भी असासा था हमारा। अच्छा यार, अच्छा भाई, मैं थोड़ा सा आप लोगों से ना नेक्स्ट 20 मिनट जब भी प्रोग्राम हो रहा है सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा। अभी कोई कमेंट देगा ना तो दूसरे बंदे ये नहीं बोलना कि मैं उससे अग्री करता हूं। ओके, ये रूल है। जिसने बोला मैं उससे अग्री करता हूं, मैंने उसको वहीं रोक देना है, मैंने दूसरे बंदे पे आ जाना है। ओके, सो नेक्स्ट 20 मिनट्स का ये राउंड अप चल रहा है। नो एग्रीमेंट। ओके, सो आ जाओ ताकि अब तुम लोग जो है ना सेफ खेलते हो। मोहसिन इमरान कह रहे हैं, इन टेस्ट सरफराज हैज नो चांस। आई थिंक रोहिल माइट बिकम द बैकअप सून। इन ओडीआई ही माइट हैव अ चांस। हारिस जी? नहीं, जैसे मैं कह रहा था वही है, क्योंकि जहां हमारी एक जरूरत है वो ओपनर की है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशली ओडीआईज में, वहां सरफराज ने अपना नाम बनाया था, वर्ल्ड कप में जो आया था, सब कुछ उसकी बैटिंग वहीं सूट करती है, क्योंकि वो लोग जब उसे नंबर 6 नंबर 7 पे डालते हैं, दैट्स नॉट वेयर ही इज मोस्ट इफेक्टिव। तो ओडीआईज में डेफिनेटली उसका चांस बनता है।
और जहां तक टेस्ट जाता है, मुझे भी वही लगता है कि रोटेशन पॉलिसी होगी, जैसे वर्कलोड इंक्रीज होगा तो he will still get his opportunity. मगर yeah, Sarfaraz still has a role to play for Pakistan. सही। MWF पास। नहीं, क्यों ये क्या पास? ये फेल ये देखा ये कोई जवाब नहीं है तो पास, यानी एग्रीमेंट करने वाले थे। जब लॉजिक की बात कह रही है तो फिर आप इलॉजिकल जवाब देने से तो कोई फायदा नहीं ना। तो फिर पास कर देंगे, यानी आपने फारूक भाई से सीख लिया पास, एक नया वर्ड आ गया है शो के अंदर, पास। चलो भाई आ जाओ, हमारे बहुत ही अच्छे बात कह रहे हैं। सज्जाद भाई से क्या नाराजगी है मैक्स? सज्जाद भाई से क्या बिल्कुल सही बात कह रहा दिल। अच्छा दिल, इससे कोई एग्री करेगा? मैं तो वैसे ही नहीं करनी है, सबको एंडेंजर करने वाले हैं। सज्जाद भाई क्या कहेंगे? ये जो होते हैं ना, ये जो कराची के क्रिकेटर, हम इस्लामाबाद वालों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। ये जो नहीं है, ये असलान कराची टेक्नीशियन ने वीडियो बना के भेजी थी कि तुम इस्लामाबाद का कोई बंदा मेरी बॉलिंग खेल सकता। तब से मुझे कराची का कहीं भी नजर आ गया, मैंने खेलना है उसको। आपने वैसे ही बात बोलूं, मिसागा डॉल्फिन्स के आपने थोड़ी सी आज आपने कर दी, अब वो डॉल्फिन्स बॉयज सारे एक्टिव हो गए। तो आज चेयरमैन प्रेसिडेंट ने कमेंट किया है, तो प्रेसिडेंट के बॉयज जो है ना वो एक्टिव हो गए। बस मैं थोड़ा सा दे दूं आज आप टारगेट में। अब तो ये कंफर्म्ड हो गया कि मुझे दावत मिलेगी, तो बाद में हम के कबाब खाने जाएंगे उधर। के कबाब इंशाल्लाह। चलें जी, अब आ जाए बैक। हमादुद्दीन कह रहे हैं साउथ अफ्रीका स्टार्टेड वेल इन सेकंड इनिंग्स इन कराची, जस्ट नीड टू गेट 1 or 2 विकेट्स एंड कोलैप्स मे बी ऑन कार्ड्स अगेन। MWF नो पास। ये बात ठीक है, इसीलिए मैं समझता हूँ क्योंकि साइकोलॉजिकली ये टोटल साउथ अफ्रीका के सर पे खेलेगा अगर पाकिस्तान एक आध विकेट निकाल जाता है। एंड बिलीव यू मी, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। दिस इज द डे पाकिस्तान नीड्स टू बी वेरी पेशेंट विद देयर बॉलिंग, क्योंकि रिजल्ट वही बात जो मैं 4 दिन से कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका ने फोर्स करना है। और रिजल्ट फोर्स करने के चक्कर में वो पहले ड्रॉ की तरफ जाएंगे कि किसी तरह हारे ना वो गेम, और फिर वो कोशिश करेंगे कि वो जीत की तरफ जाएं, और यहीं पाकिस्तान को चांस मिलेगा जो उनको कैपिटलाइज करना है। चलो मैं इसी पॉइंट से मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आपको लगता है कि आज के दिन टेस्ट मैच ड्रॉ हो सकता है? किस सिनेरियो में ड्रॉ होगा? मुझे थोड़ा सा सिनेरियो बताएं सुल्तान भाई। यार मैं देखें इधर और केसेस में मैं तो विन एक साइड की देख रहा हूँ, और मैं जिस तरह उसको परसीव कर रहा हूँ या उसको एनालाइज कर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि जो बैटिंग यूनिट इनके पास है 243 इन वन डे, और द वे द विकेट हैज बीन, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ ये है कि विकेट्स वो तो फिर सरप्राइज, तो क्रिकेट इज फनी गेम एज दिस से, लेकिन मुझे जो अभी लग रहा है टफ है पाकिस्तान के लिए। लोग समझ रहे होंगे पाकिस्तान इज ऑन एडवांटेज, मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका इज ऑन एडवांटेज। सही है, सही। यस हारिस सिंह जी, नहीं मुझे तो वही सिचुएशन लगी जैसे अगर वो मैनचेस्टर वाला टेस्ट था ना, जहां वो पहुंच गए थे 117 for 5 पे, एंड देन यू गेट अ सिचुएशन कि जहां एक इनिंग्स आपको ले सकती है। इसलिए जैसे पहले इनिंग्स में भी था, मुझे क्विंटन डिकॉक अभी तक लग रहा है कि की होगा। अगर वो आया ऐसी सिचुएशन में जहां 120 130 रन चाहिए हो, दैट्स गोना बी वेयर पाकिस्तान कैन लूज दिस गेम। ड्रॉ का कोई चांस नहीं है, नॉट विद द रन सिचुएशन। डुप्लेसी भी मैं देख रहा हूं भाई आज नहीं, डुप्लेसी तो सेटअप करेगा, ही विल बी द एंकर, मगर जो एक ऐसा प्लेयर है जो गेम को अपनी साइड में मैं MWF को यही बोलूंगा कि सिर्फ 243 रन चाहिए, सिर्फ बारिश ही है या बैड लाइट ही है जो मैच को ड्रॉ करवा सकती है। मैं इसमें आपको जवाब दे दूं जिस एवेन्यू से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इस टेस्ट मैच में किसी भी दिन 82 ओवर से ज्यादा ओवर नहीं हुए। 84 हुए थे डे 3 के ऊपर, तो आप कल का डे भी अगर देखें तो 82 ओवर्स हुए हैं। लाइट को कंसिडर करते हुए और साउथ अफ्रीका की एडवांसमेंट को देखते हुए पाकिस्तान के पास भी चांस है फील्ड खोल के उनको कहे कि खेलो मारो, तो ये आपको लंच तक पता लग जाएगा कि कौन सी टीम किस असर्टिव पे जा रही है। साउथ अफ्रीका अगर रन पाइलिंग अप के ऊपर आ गया तो डेफिनेटली पाकिस्तान वहाँ अब मेहंदी लगा के तो नहीं खेल रहे ना, पीछे हो जाएंगे, मतलब चांस लेगा। बाबर आजम इतना हैवी थिंक टैंक वहां बैठा हुआ है अपना ड्रेसिंग रूम में, तो कोई ना कोई इनपुट तो आएगी। सो मैं सुल्तान भाई की बात से असर्ट एग्री करता हूँ कि बाज़ होता है कि नहीं सुने आप बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, होता है इस तरह कि आपके ऊपर साइकोलॉजिकली प्रेशर आ जाता है दूसरी टीम के अच्छे खेलने की वजह से, बट यू आर ओनली लुकिंग फॉर वन चांस जिससे आप गेम में वापस आ जाते हैं। साउथ अफ्रीका वाले बैठे ना इंतजार में, तो उनके पास they have nothing to lose, either they go 2-0 or they go 1-1, right? और इसी में पाकिस्तान को विन मिलेगी। चाचा डिकॉक जो है वो तो तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि उसने कप्तानी तो वैसे ही छोड़ देनी है, और वो अपना पाव डुप्लेसी भी है, वो दोनों तैयार बैठे हुए हैं, उन्होंने छोड़ना नहीं कप्तानी के लिए बैठा है। मगर हमारे कप्तान जो है ना, इज अ डिफेंसिव कैप्टन, इज नॉट अ ऑफेंसिव कैप्टन। मैं यही कहने लगा था
कि अभी राइट नाउ जो सिनेरियो बना हुआ है उसमें आपकी लीडरशिप, आपकी कैप्टनशिप will gonna play a bigger role Yes. with the help of your pace bowlers as well as spin. तो पहला घंटा कैसे भाई, पहला घंटा जो है ना डिक्टेट करेगा कि गेम किस तरफ जा रहा है। पिछले आप सारे टेस्ट देख लेना, मतलब पाकिस्तान, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का भी, इंग्लैंड और इंडिया का भी, तो जो कोई भी दिन है उसके जो पहला ओवर, ये पहले 2 घंटे जो है ना, दे आर वेरी क्रूशियल, दैट सेट द टोन फॉर होल डे। अगर पहले 1 घंटे में 2 घंटे में आपको विकेट नहीं मिली, इट विल बी अ लॉन्ग डे। आई ट्रस्ट यू, गेम इज ऑन। सही। अरसलान भाई इसके बारे में क्या कहेंगे? चोकर्स विल बी चोक अगेन, 4th इनिंग्स बुली यासिर शाह विल विन अस द गेम इंशाल्लाह। जुबैर अली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, डॉल्फिन्स के मायनास फास्ट बॉलर हुआ करते थे 2012 में जी। इनका क्या स्पीड रिकॉर्ड क्या है जुबैर अली का? 2012 में इनका स्पीड रिकॉर्ड नेट्स में होता था तकरीबन 96 और बाहर होता था 86। फादराव से तेज था या कम था? फादराव दी रियल्टर से इनकी बातें बहुत तेज हैं, दी रियल्टर से। जी अरसलान भाई क्या कहेंगे? चोकर्स विल चोक अगेन? देखिए टारगेट 370 नहीं है, 240 का टारगेट है आज का, ठीक है। और सेशन बाय सेशन चलेंगे, 2.5-3 की रन रेट से जाएंगे वो, और हर सेशन में डिसाइड होगा मैच। इट कैन गो टिल द एंड, इट कैन गो टिल द एंड। आमिर रिजल्ट जरूर आएगा इंशाल्लाह ताला, रिजल्ट जरूर आएगा। आमिर क्या कहोगे? रिजल्ट तो जरूर आएगा, लेकिन बात वही है, सेशन बाय सेशन अगर आप खेल रहे हैं और आपने अपनी स्ट्रैटेजी को उसी हिसाब से मोल्ड करना है। पाकिस्तान की बॉलिंग को से फोकस करना है कि अपनी लाइन एंड लेंथ को मेंटेन रखें और बैट्समैन को मजबूर करें खेलने के लिए। भाई वो नहीं कि चौके मारने के लिए वो ओवर पिच बॉलिंग कराओगे उसको, तो जाहिर सी बात है 2 सेट बंदे खेल रहे हैं अभी, और बीच में नई बॉल भी आएगी तो देखें, हो सकता है उससे भी फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी इस वक्त भी बेटर टीम है और ये मैच जीत सकती है। चलो आप यानी एग्री कर रहे हैं कि चोकर्स विल चोक अगेन। ओके लेट्स सी। सहर खान अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर वाचिंग अवर शो और कमेंट किया आपने। डू यू थिंक पाकिस्तान हैज अ बेटर चांस और साउथ अफ्रीका हैड बेटर चांस टू विन? नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रॉ है जी बिल्कुल। फारूक भाई ये मुझे लगता है आप इसका सही जवाब दे। यार मुझे राइट नाउ समहाउ साउथ अफ्रीका के चांसेस ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। गेम अभी शुरू ही नहीं हुआ है, मेरे ख्याल में आज शुरू का आधा घंटा तो नहीं 1 घंटा बता देगा कि किधर जा रहे हैं। लेकिन नोइंग, दो अभी किसी ने पूछा था चोकर्स भाई वो सिर्फ वनडे और T20 के अंदर है, बल्कि वनडे में और वर्ल्ड कप के अंदर, बाकी उन्होंने बजा के रखी हुई सबकी। सबको मारा है, सबको मारा है, सबको मारा है। वीर बाबा से मुलाकात हो गई है बिल्कुल। तो मुझे आज लग रहा है बिल्कुल हमने भाई ये शहर हमने ये बैनर में लिख दिया आज कि लग गई है बारात, तो लग गई है बारात। देखते हैं किसकी बारात निकलती है और किसका वलीमा होता है। हमाउद्दीन कह रहे हैं वी विल लर्न अ लॉट अबाउट बाबर कैप्टेंसी टुडे टू, विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ही डज अंडर प्रेशर। गाइस अच्छा चलो बाबर के बारे में अब कैप्टेंसी के ऊपर आप लोगों ने कमेंट देना है, अपना ओपिनियन देना है, लेकिन नॉट एज लाइक अ बाबर, एज अ ग्रेट बैट्समैन राइट नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम कैसर भाई एज जस्ट एज अ कैप्टन। मैं दे चुका हूं कि आज टेस्ट दोबारा दे दीजिए। उसकी लीडरशिप का आज रियल टेस्ट है। दैट बाकी हाउ 4 ही दिन में जो मार्शल किया हिज उसका ट्रूप्स, बता दीजिए। दैट हाउ ही मार्शल हिज ट्रूप्स सही, एंड नहीं, फील्ड प्लेसिंग एज वेल। लेकिन कल का दिन नहीं देखते आपने, इतने रन खा ले, 4 रन की एवरेज से रन किए उन लोगों ने। आप देख, डोंट यू थिंक कि लास्ट 2 समथिंग के 3 तक पहुंचा है, इससे ज्यादा नहीं। आखिरी नहीं, आखिरी शायद 20 ओवर में स्लो डाउन हुआ है, उससे पहले तो वो चौके पे चौके ही लग रहे थे। नहीं अच्छा चलो ओके माय बैड। मैं कहना चाह रहा था एक बैट्समैन की बात कर रहे थे। नहीं 127 रन में से 96 रन बाउंड्री से पड़े, सॉरी ये मेरा पॉइंट था। तो हाँ अब कैसे भाई आप बताएं, टेस्ट मैच के अंदर आपके 80 या 75% आपके रन बाउंड्री से पड़े और सिर्फ जस्ट 127 रन हुए। देखिए उसमें आप जब आप के पास टारगेट 375 है तो एब्सोल्युटली मेरा ख्याल है कैप्टन के पास ये अथॉरिटी है कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेले, और जब आप अटैकिंग फील्ड लेते हैं तो बाउंड्रीज लगती हैं, कोई शक नहीं है इसमें। ओके सुल्तान भाई टेस्ट होगा कैप्टन आज? नहीं वो देखिए आज वो जो है ना, वो अपने जो थिंक टैंक्स जो बैठे हुए ना जिनका जिक्र हुआ था, आज उनके प्लान पे वो खेलेंगे और वो अपनी सारी गाइडेंस लेके आएंगे और उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब वो इफ इट वर्क्स इट वर्क्स, इफ इट डजंट वर्क, क्योंकि ऑन द ग्राउंड जो डिसीजन मेकिंग पावर एग्रेसिव या एक स्ट्रांग कैप्टन की होती है, अभी तक बाबर आजम की नजर नहीं आई है। बाबर आजम की नजर नहीं है। हारिस नहीं देखें, जहां तक मेरा
मेरा ओपिनियन है पहली इनिंग्स में उसने फील्ड सेटिंग आई हैड नो प्रॉब्लम विद हाउ ही वाज डूइंग इट. वो सही जगह पे डाल रहे थे एंड ही वाज पुटिंग दैट प्रेशर. वो जो रन आउट्स आ रहे थे वर कमिंग बिकॉज़ वो सिंगल्स आप चोक अप कर रहे थे. और जैसे कैसर भाई कह रहे हैं ये बाउंड्रीज तो लगेंगी जब नेचुरली आप अटैकिंग फील्ड्स लगाएंगे. बट ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स जैसे अगर देखें आप वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश का टेस्ट जो कल हुआ था, मोमिनुल हक वो कैप्टन था. दिस इज वन ऑफ हिज फर्स्ट टेस्ट एज कैप्टन एंड ही वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ इनपुट. यहाँ मुशफिकुर रहीम और ये सब थे. तो ये ये एक्सपीरियंस और थिंक टैंक था. एंड समटाइम्स इट्स जस्ट इफ द बैट्समैन आउटप्ले यू टू दैट लेवल इट हैपेंस. मगर जहां तक हमारी स्ट्रेटजी है, जहां तक हम आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक बाबर हैज डन फाइन. इट्स ऑल अप टू द बॉलर्स नाउ. एमडब्ल्यू में तुम्हारी शायद थोड़ी याददाश्त अच्छी कर दूं. बादाम तुमने खाया नहीं है 3-4 दिन से. फारूक भाई ने 3 दिन पहले एक बात कही थी कि उन्होंने कहीं उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि सरफराज एज अ टेस्ट कैप्टन वापस आ रहा है. आज लगता है अगर बाबर टेस्ट हारेगा तो ऐसी बात हो जाए. पहले तो मैं ये कह दूं 2 दिन से मैं भी आपको ये कह रहा हूं कि बाबर आजम असर्टिव कप्तान नहीं नजर आ रहा. आपने रिव्यूज के ऊपर भी देखा, बबूमा का रिव्यू, फिर कल रिजवान ने उसको ओवररूल किया और इसी तरह हसन अली ने भी ओवररूल करवाया बाबर आजम को. तो इस बात से तो मैं एग्री करता हूं कि बाबर आजम असर्टिव कप्तान के तौर पे फील्ड में अभी नजर नहीं आया. और ये पहला मैच, पहली सीरीज है उसकी, तो गिव हिम बिट ऑफ टाइम. जहां तक बात है बाबर की स्ट्रेटजी की, सुल्तान भाई की बात में यकीनन दम है. स्ट्रेटजी वो इस वक्त उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है कप्तानी का टेस्ट मैचेस में, तो वो वही लेके आएगा जो उसको फीड इन हो रहा है. इम्प्लीमेंटेशन इज व्हाट पाकिस्तान इज गोइंग टू बी लुकिंग फॉर. इम्प्लीमेंटेशन बॉलर्स ने और कप्तान ने मिलके करनी है. आपको बाबर आजम की रिव्यूज की सिलेक्शन जो है ना वो बता देगी कि कितना अच्छा कप्तान है और कितना बुरा कप्तान है. आमिर तुम माशाल्लाह कैप्टनसी करते हो, बताओ तुम जब फील्ड सेट करते हो, जब में बॉलर को पिटाई लग कैप्टन है आमिर. नहीं the best आमिर तो खुद बता दो यार. the best. मैं सीरियस क्वेश्चन कर रहा था, फर्रुख भाई को जवाब नहीं देता हूं. हमने भी सीरियस पूछा यार. हमारा क्या आमिर तुमसे मजाक है? हमारा नहीं है ना. He is from the best. ये याद रखो. नहीं मगर देखिए मेरा भी एक सवाल है कि विकेट कीपर शुड बी द वन हु इज द फर्स्ट ऑप्शन जब आप रिव्यूज का ले रहे हैं. ही हैज द बेस्ट व्यू ऑलवेज कि लाइन कहाँ है, लेंथ कहाँ है. तो अगर बाबर और रिजवान में जो रिलेशनशिप है, दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट. स्पेशली अगर आप समझ रहे हैं कि रिजवान इज अ लीडर इन हिमसेल्फ एनीवेज, उसका वैसे ही होना चाहिए. अगर ओवररूल की बात है, इट शुड बी रिजवान हु इज गिविंग दैट फाइनल डिसीजन अलोंगसाइड बाबर के, अगर लें या नहीं लें. सही. मैं आमिर एक सवाल कर रहा था तुमसे. हां बोलो. मुझे नहीं लगता कि बाबर जो है ना वो नेचुरल लीडरशिप है उसके अंदर, इवन दो ही हैज बीन ग्रूम्ड एज अ कैप्टन, लेकिन उसके अंदर नहीं है वो चीज़. और उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको कि वो उसको थोड़ी सी कोचिंग वगैरह, ये जो अपना मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा उसको, अगर आपने कैप्टन रखना है. और हमारे साथ मसला ये है कि हमने जो है ना कोई जो हम ओपनर्स के साथ करते हैं ना, वो कैप्टन के साथ भी वही करते हैं कि भाई 5 इनिंग्स हो गई, 6 इनिंग्स हो गई, आप खराब खेल रहे हैं, आप बाहर जाएं और नए बंदे को लेकर आ जाते हैं. तो अब ये नहीं करना. यही बोल रहा हूँ, पीसीबी को जो है ना थोड़ी सी प्लानिंग पे फोकस करना पड़ेगा अपनी, और थोड़ा सा जो है ना लॉन्ग हॉल का गेम खेलना पड़ेगा. यहाँ पे ये छोटे छोटे तो ये किस्से होते रहेंगे कि इधर से आप मैच जीत जाओ, मैच भी हारेंगे, कभी आप बहुत ही खराब मैच जो आप हार रहे होंगे वो भी जीत जाएंगे. तो हमारा मसला ये है कि हम जो है ना एक छक्के पे बंदे को हीरो बना देते हैं और सिफर पे आउट होने पे जो है ना वो जीरो भी बना देते हैं. तो मेरा ख्याल है, मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि उसको तीनों फॉर्मेट में कैप्टन बना के पीसीबी ने बहुत जल्दी किया. एक जस्ट आप लोग की एक मेमोरी में एक बार डाल दूं, वो कराची किंग का कैप्टन नहीं है कभी भी. तो अगर उनको ग्रूम करना था, तो अगर ये खुद अपने आप को ग्रूम करना था, तो उन्होंने मैनेजमेंट को बोलना था कि यार आई वांट टू बी अ कैप्टन, आई वांट टू लीड अ कराची किंग. एटलीस्ट अपने आप को पॉलिश. आमिर ये बताओ, जब तुम कैप्टन हो, मार पड़ रही थी बॉलर को, तुम फील्ड बॉलर की तरफ से सेट करते हो या बॉलर को देते हो कि यार, फिर सुल्तान भाई आपसे भी मैं सवाल करूंगा ये वाला सवाल कि या तुम खुद कैप्टन या बोलते हो कि यार आई वांट टू सेट माय ओन फील्ड? नहीं, मैं बॉलर को तो फ्री हैंड देता ही हूँ फील्ड सेट करने के लिए, लेकिन उसको फिर उसी फील्ड के हिसाब से बॉलिंग भी करानी होती है. अगर वो उस फील्ड के हिसाब से बॉलिंग नहीं करा रहा तो ऑब्वियसली आई वुड कम इनटू द पिक्चर रन में. यस एग्जैक्टली. जी सुल्तान भाई, ग्रूमिंग का बड़ा जिक्र कर रहे हैं. उनका अपना ग्रूमर रहा है 5-6 साल. वो यार था और वो भी था, दोनों था. ग्रूमिंग अच्छी है उसकी. देखिए बॉलर की जाहिर सी बात है, जब पिट रहा होता है तो वो कई रीजंस की वजह से पिट रहा होता है ना, कि लूज कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, लाइन लेंथ किस पे है, फील्ड किस तरफ उसकी डायरेक्ट करनी है. जाहिर सी बात है, अगर वो कंट्रोल में नहीं आ रहा तो प्रोटेक्शन लगाते हैं उसी तरफ जिस तरफ वो लीक कर रहा है.
और उसके बाद एट द सेम टाइम उसको आप ये नहीं है कि डिफेंसिव में नहीं जाता, मैं साथ ही कोशिश करता हूँ कि अटैक भी रहे, लेकिन उस जगह पे प्रोटेक्शन दे जहाँ पे लीक हो रही है। I just think ये तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम ऑन द होल है. अगर आप केन विलियमसन के बारे में सोचें, do you think he's a naturally just attacking captain? It's not about that. It's you put too much attribution और आप कुछ ज्यादा ही दे रहे हैं कि कैप्टन ये करेगा तो जीतेंगे, कैप्टन ये करेगा तो ज्यादा से ज्यादा तो बॉलर पे होता है. मगर उस on top of that, अगर आप situation read कर रहे हैं and putting it on, like to say कि बाबर attacking नहीं है, that just seems like it's such an odd thing to me कि हमेशा पाकिस्तान ये होता है कि attacking captain ही अच्छा है और defense का मतलब बुरा है. Like it's not. नहीं, लेकिन सिचुएशन को असेस करना भी आना चाहिए ना, सिचुएशन को असेस करना भी आना चाहिए. कैप्टन का गेम ये है कि उसको सिचुएशन को असेस करके उसी तरह से स्ट्रेटेजाइज करे. मार्शल हिज ट्रूप्स, राइट? तो मुझे वो नहीं लगता, उसकी वो डायरेक्शन ही नहीं है अभी. यार देखिए, ये उसको this match जिस सिनेरियो में आ गया है ना, both sides they cannot afford to take it all the way towards the end. They have to make it decisive within the first two sessions. Like meaning फर्स्ट सेशन में जीत जाएंगे, लेकिन वो अपनी किस डायरेक्शन में जाना वो जरूर श्योर हो जाएगी. चलो मैं उसमें थोड़ा हारिस की बात का जवाब देना चाहूंगा कि केन विलियमसन बेशक अटैकिंग नहीं है, बट ही इज अ थिंकिंग क्रिकेटर. ही इज ऑलवेज थिंकिंग एंड ही इज अहेड ऑफ बॉलर्स. ही इज ट्राइंग टू मेक अ प्लान राइट देयर. कल अब जिस तरह मैंने देखी इंडिया और इंग्लैंड के मैच में, दे मिस अ ट्रिक बाय प्लेइंग पुजारा. जब वो जाफरा आर्चर उसको बॉल कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने उसकी लेग स्लिप हमेशा रखी है और थोड़ी उसको चेस्ट पे बॉल खिलाई है, एंड ही वाज वीकर देयर. और कल उसने वहां पे 2 शॉट्स खेली और अगर वहां पे बंदा होता तो ही वाज गॉन. सो ये थिंकफुल या थॉटफुल जो है ना, ये एग्जीक्यूशन और हेड ऑफ एक स्टेप आगे होना, ये कैप्टन का ही काम है ना. सही. चले अब मैं अगले मैं लास्ट पॉइंट, जस्ट क्लोजिंग कमेंट ऑन बाबर. Maybe today and this pressure moment is the point which makes Babar Azam as a good captain. You never know. So यही तो कामयाबी है, एक ग्रेट प्लेयर की निशानी है कि उसको प्रेशर पॉइंट में वो अपने आप को कैसे खड़ा करता है और टीम को ट्रूप करता है. सो बैक करना चाहिए. मेरा ख्याल है बाबर के अंदर एबिलिटी है कि एज अ प्लेयर वो अच्छा प्लेयर है, तो हो सकता है अच्छा कप्तान भी बन सके. ये मोमेंट है उसका. लेकिन ख्याल है कि वो उसको जाया कर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं उसके ऊपर, और आपको नजर आना शुरू हो गया है, उसके परफॉर्मेंस पे असर आना शुरू हो गया है. वो जिस तरह टीम अश्विन महाराज ने उसको जो महाराज जो भी नाम है भाई का, जिस तरह उसने 3 विकेटें खाई हैं उसकी, बाबर की क्लास ऐसी नहीं है दोस्त कि वो पाकिस्तान की विकेटों के ऊपर इस तरह वो खा जाता है. अच्छा चलो गाइस, मुझे थोड़े से कमेंट लेने हैं. मैं कमेंट लेने से पहले अभी हम लोगों के साथ मुझे हटाकर आप लोग 8 लोग हैं. मैं चाहता हूँ 4 कौन कह रहा है, मतलब 4 चलो छोड़ो, मैं नहीं ऑप्शन दे रहा. कौन कह रहा है पाकिस्तान जीतेगा, जरा हाथ उठाने. 1 2 3 4 5 और बाकी 3 आप लोग कह रहे हैं साउथ अफ्रीका जीतेगा. फरूक भाई, सुल्तान भाई और सजाद भाई. जीत सकता नहीं अभी आप. हाँ या ना, मैं कल से कह रहा हूँ यार. हाँ या ना, पाकिस्तान के साथ दिल हमारा तो उधर यार हमारे पास डॉक्टर कोई नहीं है वो यार. ये होस्ट हमारा नहीं है यार, ये मरवाएगा हम लोगों को. ये मरवाएगा. सजाद भाई वैसे सबसे पुराने 2 दिन से कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका का चांस ज्यादा है. यार जो पुरानी बातों को इस वक्त जो है वो साउथ अफ्रीका के चांस ज्यादा है इस वक्त. अच्छा 3 आप लोग कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, आप 5 कह रहे हो कि पाकिस्तान जीतेगा, राइट? अब इस बात पे डटे रहना. आप जो भी सवालात के जवाब होंगे आपने पाकिस्तान के फेवरेट में देने और आप तीनों ने साउथ अफ्रीका के उसमें देने. ओके, डिबेट कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है. सलाम ले लो भाई. आतिफ कबीर हमारे न्यू जर्सी से. आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम. आतिफ एक मिनट, फरूक भाई मैं ले लेता हूँ. हाँ, ये सही. आतिफ भाई थैंक्स फॉर वाचिंग. सवाल कर लें प्लीज, आप जो है मैं डेफिनेटली सलाम देते चले जाते हैं, वो इस्लामी आदमी. वालेकुम सलाम. फरूक भाई इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, मोहम्मद अली खान का. मोहम्मद अली भाई का हमने काफी इंट्रोडक्शन दिया है. ये हमारे दोबारा दीजिए. मिल्टन में होते हैं, चीते किस्म के टेबल के प्लेयर हैं और टेबल की टीम भी चलाते हैं, अच्छे दोस्त हैं. सही. मैं चाहूंगा मिल्टन वालों की शक्ल पे एकदम हंसी आ गई. हाँ, मिल्टन मैं चाहता हूँ कि देखिए मोहम्मद अली खान साहब, आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे जब भी आप कमेंट देते हैं. मैं चाहता हूं कि आपका स्पेशली इंट्रोडक्शन दिलाया जाए फरूक भाई, क्योंकि फरूक भाई आपको बोलते रहते हैं यार कमेंट कर. सो एनीवे, कंसीडरिंग साउथ अफ्रीका बैटिंग डेप्थ एंड द फैक्ट दैट वैन ड्यूजन, फैफ एंड डीकॉक आर ड्यू टू स्कोर बिग, इज इट सेफ टुडे टू प्रेडिक्ट साउथ अफ्रीका विन? अब ये सिर्फ 3 ने जवाब देने. ओके, बाकी पाकिस्तान वाले थोड़े साइड में हो जाए. जी सुल्तान भाई मेरे से शुरू कर लो. जैसे मैंने पहले भी किया. मोहम्मद भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड टू सी यू टुडे. कि जो इनके पास इस वक्त बैटिंग ऑप्शंस है ना, और जिस तरह ये मार्करम और डसन खेल रहे थे,
243 इतना कोई बड़ा स्कोर है नहीं, प्रेशर ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर है, ठीक है। दे हैव, जिस तरह फरूख में कहते थे, दे हैव नथिंग टू लूज, स्पेशली फैफ एंड डिकॉक। दे आर काइंड ऑफ प्लेयर्स जो खुल के जब खेलें तो बहुत अच्छा खेलते हैं, और आज वो खुल के खेलेंगे। उनको उन्होंने अभी इनिंग नहीं बनानी, तीसरे चौथे दिन का नहीं सोचना, उन्होंने आज का सोचना है। और इस चीज के वो बड़े वो जो है ना मैच विनर लोग हैं इन सिचुएशन में। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से खुलने की बात कर रहे हैं जब शो एंड हो रहा होगा। जी सजाद भाई, इसके ऊपर कमेंट करेंगे या मैं आगे चलूं? ये जो होता है ना, जब बैट्समैन खेल रहा होता है ना कि मैं स्कोर करूंगा, वो बॉलर की मेंटालिटी पूरी बदल जाती है। और जब ये कोई एग्रेसिव बैट्समैन अच्छा खेल रहा हो ना, तो हमारे जो सुपरस्टार लेग स्पिनर हैं उनकी वो लाइन लेंथ छूट जाती है। सही, ये काफी ज्यादा दुख है। And he's the front part. If they shake him, Pakistan is gonna lose. दूसरे हसन अली, if he doesn't get a couple of wickets, South Africa easily. आप अच्छा सही है। सच्चाई कह रहे हैं, if South Africa wins the game, it's because Pakistan failed to capitalize on its opportunities, not because South Africa outplayed Pakistan. फरूक भाई आपकी टीम को सपोर्ट कर रहा है, ये कमेंट तो मैं चाहूंगा आप ही जवाब दें। मैं कहूंगा कि एक जरा आगे स्पिन गुल का एक सवाल है, वो भी ले लो, मैं इसका जवाब साथ ही दे दूं। यार स्पिन गुल, अस्सलाम वालेकुम जी। ये फरूक सेड यस्टरडे 275, मैंने बिल्कुल कहा था भाई, इस पे मैं जवाब दे दूं पहले कि मैंने बिल्कुल कहा था कि ये मैं 275 सेफ है, लेकिन पाकिस्तान एक तो विकेट जो है ना वो चौथे दिन भी हाफ था, 3.5 के बाद उस तरह नहीं खेली जिस तरह हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, और दूसरे के साउथ अफ्रीका ने भी वैसी बैटिंग की है जैसी उसने पूरी शुरू में पूरी सीरीज में नहीं की। तो बिल्कुल मैंने 275 सेफ कहे थे, लेकिन ये है कि वो बंदा गलत भी हो जाता है कभी कभी यार। सही। अच्छा मेरे साथ एक मिनट में एक गेस्ट आ गए हमारे, कहाँ है? आगे मैंने ले लिया था। सॉरी जी, जनाब डॉक्टर अली अंसारी, हमारे बड़े जबरदस्त क्रिकेटर हैं, टेप बॉल भी खेलते हैं, हार्ड बॉल भी, और बड़े क्रिकेट के जो है ना वो शौकीन है। तो डॉक्टर अली, थैंक यू यार, आपने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए आप। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। डॉक्टर साहब पहले तो 2 सवाल का जवाब दें, तब मैं आपको डिसाइड करूंगा आपने कहाँ पे बैठना है। पहले तो सवाल का जवाब दें। आपको माशाल्लाह मैं दूसरे चैनल पे देख रहा था, आपको कैसा लगता है कि उस चैनल की वजह से आप यहाँ पर आए, और आपने कहा यार ये डिस्कशन अच्छी हो रही है, इधर आ जाएं? यार फर्रुख भाई जहाँ होते हैं मैं खुद खींचा चला आता हूँ, लेकिन आप सब लेकिन ये कि आप लोगों का टीम, मैंने जो आप लोगों का डिस्कशन चल रहा होता है, इसमें 2-3 भाई लोग जो हैं उनके साथ बैठने का मौका मिला। भाई लोग तो सिर्फ 2 ही हैं, मैं और अरसलान भाई हैं कराची के। मैं भी कराची का हूँ भाई, क्या होगा, फारूक भाई भी कराची का। हाँ फिर भाई लोगों का मुझे कॉफी पकड़नी पड़ेगी यहाँ तो जबरदस्त। मैं बहुत चार्ज रहता हूँ, बस ख्याल कीजिएगा, कराची बॉय हूँ। अच्छा चले ये बताएं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज, पाकिस्तान को, साउथ अफ्रीका की विन को? यार बांग्लादेश का हाल देख के तो अब तो दुआ करने को दिल चाह रहा है। सही है। नहीं चलें डिसाइड कर लें, ताकि मैं फिर सवालात, मैंने कहा कि देखें अभी क्या है कि फर्रुख भाई, सुल्तान भाई और सज्जाद भाई साउथ अफ्रीका को बोल रहे हैं कि आज जीतेगा, बाकी 5 जो हैं वो हम लोग के, वो तो आपको मैं चाहूंगा कि आप डिसाइड कर लें ताकि फिर सवालात के जवाब। नहीं, पाकिस्तान का बहुत चांस है, क्योंकि जिस तरह विकेट में क्रैक्स पड़े हुए हैं और आपके पास 2 बेहतरीन स्पिनर हैं, तो इंशाल्लाह खींच लेंगे ये लोग, खींच लेंगे। चले अब आ जाते हैं थोड़े से। हमाउद्दीन कह रहे हैं हारिस मेक्स अ गुड पॉइंट, मिसबा वाज नॉट एन अटैकिंग कैप्टन एंड टुक अस एट नंबर 1। हारिस तुम ही जवाब दे दो, ये पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है और तुम्हारे बारे में। नहीं शुक्रिया। नहीं देखिए वही बात है, जैसे दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि इट्स अबाउट रीडिंग द सिचुएशन, और जहां भी आप अपनी एक बात है कि कैप्टन जो अच्छा कैप्टन होता है वो डिक्टेटर बनने की कोशिश नहीं करता है। इट्स वन अबाउट ट्रस्टिंग द बॉलर्स टू बी एबल टू पुट इट इन द राइट स्पॉट, और एक्सक्यूशन व्हिच जब मिसबा था हमारे पास मिलती थी सईद अजमल के वट्टे के साथ। बट एनीवेज इट्स ऑल अबाउट के जहां यहाँ अपॉर्चुनिटी होगी वहां हमने ले ली। तो ये मार्करम और वैन ड्यूसन की जो तकरीबन 100 की पार्टनरशिप होगी, इसे जल्दी से जल्द तोड़ना है। वहां अगर नहीं टूटी तो देन इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम। चले एक और कमेंट ले लेता हूं, फिर मैं आता हूं जरा आपके पास डॉक्टर साहब। मोहम्मद अली खान कह रहे हैं जो मिल्टन में रहते हैं, यस्टरडे पैनल थॉट डिफरेंटली। एमडब्ल्यूएफ इसको डिफेंड कर लो, कल तो तुम लोग कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हो, ये कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। नहीं वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं आप लोग कल ये कह रहे थे। उनको बुरा नहीं बोलो, वो भी यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। ये भी वही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। He's a liar. Approved man. मैं आपको वापस लेके जाना चाहता हूँ मिसबा वाले सवाल के ऊपर, क्योंकि वो रेलेवेंट पॉइंट है यहाँ आज के मैच के हिसाब से। मिसबा का जो कॉन्सेप्ट और डिजाइन था पाकिस्तान को नंबर 1 पे ले जाने का, वो यूएई में 11 साल खेलने के बाद एक सेट पैटर्न हो गया था।
पाकिस्तान 2007 से यूएई में 8 से यूएई में खेलना शुरू किया, 2014 में 15 में जाके नंबर 1 बना। 7-8 साल पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली वहां पे एक डिजाइन बनाया टीमों को पिन डाउन करने का। यही मौका अगर आप 4 साल पाकिस्तान को इन पाकिस्तान देंगे, यू सी इट विल बी अ डिफरेंट टीम। तो ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको सोचना चाहिए। मिसबा probably was a defensive captain, but the elements around him and the way he took the team forward in his design worked out for Pakistan. Moreover, sorry, he was a born leader as well. Misbah had that qualities to lead. और परफॉर्मेंस भी दी थी। Yes, compensate both, you know, like it's hard. उसकी टीम भी देखे कैसी थी उसके साथ। हाँ, हमारे लूली लंगड़ी किसको लेके चलेगा? बाबर आजम अगर खुद नहीं करेगा तो फिर फारिग टीम हो गई बिल्कुल। तो मिल्टन लाइन हो गई, वो मिल्टन लाइन वाली भाई देख रहे होंगे ना कि वो अगर उनको वो भट्ट साहब ने स्कोर नहीं किया और उसने स्कोर नहीं किया, हमारा लेफ्टी दूसरा है, तो टीम गई भाई। डॉक्टर साहब आप आए, फरूक भाई के रेफरेंस से आए। अब सवाल फरूक भाई के आपने जवाब देने। कल फरूक भाई कह रहे थे 275 का सेफ टारगेट है। ये स्पून गिल हैं, ये हमारे माशाल्लाह बहुत रोजाना कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। आप इनको क्या कहेंगे अगर 275 का टारगेट होता? आप समझते हैं कि आज आप बैठ के बात कर रहे होते मेरे से? 275 तो बनते हैं यहाँ पे नहीं। 275 का टारगेट कल फरूक भाई ने कहा था बहुत होगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर 200 था, वो अभी तक जो है ना वो हाईएस्ट है चेज 4th इनिंग का। और जिस तरह गाबा में कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं हारा था सही जी डॉक्टर साहब। नहीं, 275 थोड़ा सा टाइट हो जाता, कॉम्पिटिटिव हो जाता। और साउथ अफ्रीका ठीक है, साउथ अफ्रीका ये याद रखें कि वो ये उनकी 4थी इनिंग्स है, ठीक है ना, वो भी एडजस्टमेंट के फेज में है। तो इस वक्त खैर हमारा जो हिस्ट्री है रावलपिंडी या कराची की, 5वें दिन पिच बहुत खराब हो जाता है। अगर स्पिनर्स ने खराब जहां पे पैचेस होते हैं वहां पे सही बॉल डाल दी तो फंस सकता है, मैच फंसेगा। ये साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो है ना, सिवाय उनका जो एक 6-7 पे जो खेलने आता है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, बबूमा, इसको ड्रॉ की तरफ लेके जा सकता है। वो लोग ड्रॉ की तो आपने अभी अच्छा, तो आपने ये जो डॉक्टर और वकील की यहाँ पे पार्टनरशिप चल रही है, एक वो वाहिद थे जिन्होंने बोला था ड्रॉ होगा, तो यहाँ पे जो है ओके मैंने नहीं सुना उनका, लेकिन साउथ अफ्रीका विल गो फॉर अ ड्रॉ, क्योंकि उनकी बेइज्जती का लेवल वो अपना कम करेंगे, क्योंकि यहाँ से जीतना साउथ अफ्रीका की बहुत टफ है, क्योंकि उनकी टीम में वो स्पिरिट नहीं है। सही, चले एक और कमेंट ले लेते हैं बड़ा, इस पे तो शायद मैं ही जवाब दे दूंगा। SHI कह रहे हैं यू शुड इनवाइट ताबिश आजमी टू द शो, ही इज आल्सो लिविंग इन मिल्टन। जी वो सही बात है, बस क्या बोले उनको, बोलो कि डाखाना नहीं मिला, डाखाना नहीं मिला, डाखाने नहीं मिलता, डाखाने नहीं मिलता। मोहम्मद रमीज आ जाए तो फिर लाते हैं ताबिश हाशमी। तो फरूक भाई मुझे बता दीजिएगा, मैं पाकिस्तान का वीजा लेके कैनेडियन पासपोर्ट पे जरा छुट्टियों पे चले जाऊंगा जब अगर वो आ जाए। ताबिश नाम के सारे लोगों को बाहर ही बैठाना है। भैया ये वाला ताबिश अगर आ गया तो हम सारे बाहर हो जाएंगे। मेरा ख्याल है टीम मैनेजमेंट भी यही सोच रही है। टीम मैनेजमेंट भी सोच रही है कि अगर ये वाला ताबिश आ गए तो टीम मैनेजमेंट बाहर हो जाएगी। चैनल भी यही सोच रहा है। नहीं, ताबिश जो है वो मिल्टन में अक्सर पाए जाते हैं क्रिकेट खेलते हुए, तो हम जरूर ताबिश से रिक्वेस्ट करेंगे और पर्ची लगाएंगे, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा इंशाल्लाह। चलो सही है। सैफ रिजवान कह रहे हैं इस टीम मैनेजमेंट चेंजिंग। सुल्तान भाई स्पोर्ट्स ट्रेंड की या पाकिस्तान की? ये पूछ लो सैफ रिजवान। बांग्लादेश की इस वक्त तो नहीं, वैसे फरूक भाई ने बहुत अच्छा सवाल कर दिया है, इसका जवाब जो है वो सुल्तान भाई से लूंगा मैं। हाँ, अदिल से पूछो। ये जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं कोई नियर फ्यूचर में ऐसे चेंजेस नहीं देखता। ऐसे चेंजेस कोई एग्री करेगा इस पे कोई? तो फिर मैं उससे कमेंट लूंगा, वरना आगे चल रहा हूँ। तो अरसलान पे बड़े चुपचाप बैठे हुए। नहीं कोई चेंजेस कोई नहीं होंगी, मगर मैच का बस ये शुरू में पहले घंटे में पता चल जाएगा, वो चार की 100 से अगर उन्होंने स्कोर कर दिया ना शुरू में, तो पाकिस्तान फिर हो जाएगा डिफेंसिव। सही। चले स्पिन गुल कह रहे हैं सुल्तान भाई यू हैव अ नाइस बियर्ड माशाल्लाह। सुल्तान भाई आपका फेसबुक का नाम स्पिन गुल के नाम से है आपका ये आईडी? ये मेरे ख्याल स्पिन गुल आपने मेरे ख्याल लेटली को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपने आप को, ये कह रहे थे कि शायद पाकिस्तान में। हाँ, और स्पिन गुल मतलब भी होता है। तो थैंक यू वेरी मच स्पिन गुल, थैंक यू वेरी मच। हाँ, इन्होंने असल में आज दाढ़ी इसलिए चली, पाए खाए सुल्तान। मैंने आज बहुत जबरदस्त पाए बने, वैसे भाई लोगों कोई आ सकता तो आगे ले जाओ यार, छोड़ दें
पहले बता छोड़ दी दीजिए। मैं पहले बता ये तो वही वाली बात हो गई, ये तो वही वाली बात हो रही। दो लोग ट्रेन में जा रहे थे, एक ने लंच बॉक्स खोला और जो खाना शुरू किया, कहने लगे हाँ भाई इजाजत है। ये बात आई है ना, ये देखो डॉक्टर के सामने पाए भाई की कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल हेल्दी डाइट। आप पहले से बताते हम सब पहुंच जाते। वहीं से प्रोग्राम हो रहा होता, लेके जा सकते हैं। हाँ, मैं जरा छापे पे हाजिर हो जाता। सजाद भाई को सवाल पूछे, सजाद भाई इधर जैनब अब्बास को देख रहे हैं, वो बैट वुमन बन के आई है। वो तो ड्राइविंग वैकेंसी दे गए सजाद भाई। चलें अगले कमेंट पे चलते हैं। SHI कह रहे हैं I see two things happening, either Pakistan will come with a bang or will win outright, or South Africa will win this quite dominantly. आउट मैं ये कमेंट लेना चाहता हूँ। अच्छा, मैं समझ आउट हो गया कोई। नहीं अभी यार आप आउट कराने के चक्कर में और इसको मैं कनेक्ट करूंगा अपनी शुरू की बात में जो मैंने की थी। मेरी ओपिनियन में, इट्स माय ओपिनियन, मैच इज सेट फॉर 2 players either from Pakistan. It has to be Hassan Ali and Yasir Shah. Yasir Shah के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, वो अंडर प्रेशर है, उसको मालूम है इस बात का। He knows अगर वो आज 3 से 4 विकेटों का स्पेल निकाल जाता है और दूसरे एंड पे हसन अली अपने आप को अनाउंस कर देता है बैक इन टेस्ट क्रिकेट विद टुडेज परफॉर्मेंस, हसन अली इज गोइंग टू बी देयर इन द टीम फॉर लॉन्ग, आई एम टेलिंग यू। सो मैच फॉर पाकिस्तान हैज टू बी सेट अप बाय दीज 2 players and others will play around him. अब आप साउथ अफ्रीका के एंड पे अगर आ जाएं तो वो आप सवाल सुल्तान भाई या सजाद भाई से ले सकते हैं, क्योंकि मैं साउथ अफ्रीका के हक में नहीं हूँ। हक में नहीं है। अगर बात हक की हो रही है तो मैं बोलूंगा कि हक का जो है सिर्फ जवाब कैसर भाई देते हैं यहाँ पे। जी कैसर भाई। मैं थोड़ा सा इनको वजाहत भाई को जवाब देना चाहूंगा। अच्छा दे आज जवाब। आज आखिरी शो है, जवाब नहीं, इनको नोटिस भिजवाएं। वो तो कर लेंगे। सुल्तान भाई, मैं सुल्तान भाई मैं कह रहा हूँ आज आखिरी शो है, दिल की भड़ास निकाल लें आज। अब बता रहा मैनेजमेंट चेंज होने वाली है। सुल्तान भाई फट्टे चुक दे हो। सुल्तान भाई कोई और आगे चांस नहीं देगा आपको, आप आज बोलिए। ठीक है, ये तो मेरा ओपनर वाला स्टैंस करवा दिया पाकिस्तान में आपने, आगे चांस नहीं मिलेगा। ख्याल कर लेना, आपको थाई गार्ड पहन के खेलते हैं आप, मुझे पता है आपका। मैं आपको ये बताता हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नाम की तरफ जाएं। हसन तो है ही, स्विंग कर रहा था, अच्छा बॉल रिदम में आ रहा है। यासिर ऐसे 5वें डे की विकेट पर बहुत इफेक्टिव होते हैं कहीं पे भी हो, ठीक है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा यासिर शाह से ज्यादा मुझे जो बंदा इफेक्टिव नजर आएगा ना, वो नुमान आएगा। मेरा ये पॉइंट। ये मेरा एक डॉक्टर साहब को बुलाने का हमारा हमेशा एक हम डबल फायदा उठाते हैं। तो क्विकली हम 2 मिनट के लिए मूड जरा अपना जो है वो थोड़ा सा सीरियस करते हैं। एक तो डॉक्टर से पूछते हैं यार लेटेस्ट हमारी जो क्या सूरत हाल है कोविड की। डॉक्टर साहब जब भी आए उन्होंने बहुत तफसील से हमें बताया, तो कोई ऐसी चीज डॉक्टर साहब जो आप बताना चाहिए जो पॉजिटिव, और डॉक्टर शाम हमेशा बड़ी पॉजिटिव चीजें बताते हैं। तो एक तो ये हमें कोई बताओ यार कि ये जो बहुत ही क्विकली कि क्या बात है। देखिए सबसे पहले तो ये कि फॉर सर्टेन रीजंस आप लोगों को भी पता होगा कि कोविड के नंबर्स दे आर कमिंग बैक टू द लोअर लेवल्स। जो नवंबर में जो काउंट्स चल रहे थे ओंटारियो के अराउंड 4000, अल्हम्दुलिल्लाह वो 4000 पे आ गए। लेकिन ये कि अच्छी बात ये है कि नंबर कम हो रहे हैं और ये अब नीचे की तरफ ट्रेंड जाएगा। अगर जो ये रूल लेके आई है गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा लेट लाए। ये पहले करते जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने किया था कि बॉर्डर्स को उन्होंने लिमिट किया था, और जो भी ट्रैवलर्स आते थे उनको होटल में ऑन देयर ओन एक्सपेंस वो कहते थे आप एक ब्रीफ क्वारंटीन करें, टेस्ट क्लियर हो जाए, देन यू गो बैक टू योर हाउस। ये पहले कर लेते, खैर वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, हम तो बाहर बैठ के एक रिमार्क्स दे सकते हैं। बहरहाल इसके अच्छे नताइज भी आएंगे। कोशिश वो ये कर रहे हैं कि ट्रैवलिंग को डिस्करेज करें। एक बात तो ये तो मुझे लग रहा है हमारे पूरे जो कॉलीग्स बैठ के हम लोग बात करते हैं कि हमें लग ये रहा है कि इंशाल्लाह ईद के बाद आउटडोर क्रिकेट भाई लोग सब शुरू कर सकते हैं। और उसका तरीका ये मेरा, आप लोगों ने यकीनन सोचा होगा, लेकिन मैंने अपनी टीम के लिए जो हम लोगों ने प्लान किया है, हम लोग मार्करम में खेलते हैं कि भाई रात के टाइम, अब ईद कब हो रही है, मई के फर्स्ट वीक में हो रही है, तो ठंड होती है रात में, तो आप लोग दिन में, जैसे हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम दिन में स्कूल का बैकयार्ड या कोई ग्राउंड वगैरह देख के दिन में हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो एटलीस्ट समथिंग टू लुक फॉरवर्ड। और एसओपीज भाई अपने वही पुराने एसओपीज सबको याद हो गए अब तो।
सिर्फ खतरा दो चीजों से है। एक यूके वेरिएंट है जो कि यहाँ पे इवॉल्व हो चुका है, 56 टाइम्स ज्यादा इन्फेक्शंस बता रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इंटेंसिटी कम है, यानी इट्स नॉट दैट सिवियर और डिवेस्टेटिंग नहीं है। जो सबसे खतरनाक वेरिएंट अभी तक आया है वो साउथ अफ्रीका से आया, उसको साउथ अफ्रीकन वेरिएंट या कोविड 145 स्ट्रेन बोलते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में नहीं आया है, वो यूएस में आया है, और मुझे लगता है शायद इसी वजह से ही इतनी इन्होंने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन पिछले वीक डाल दी। ये डॉक्टर साहब मेरा आपसे इसके ऊपर एक ही सवाल है, वो ये है कि वैक्सीनेशन जो आ रही है ये सारे वेरिएंट्स को काउंटर करेगी या सवाए एक के? वो कौन सा है? साउथ अफ्रीका का जो, अच्छा मजे की बात है, जितनी क्रिकेट प्लेइंग नेशन है ये वहीं से हो रहे हैं। खैर, तो साउथ अफ्रीका का जो स्ट्रेन है उसके बारे में ये सुन रहे हैं, आई होप कि आई एम रॉन्ग कि ये वैक्सीन रेजिस्टेंट है, लेकिन अभी तक इसी कोई क्लियर हमारे, क्योंकि ये इवॉल्व हो रहा है तो अभी कोई क्लियर हतमी स्टेटमेंट नहीं आया है। डॉक्टर साहब ये जब ये नंबर्स देते हैं ना कि ये एफिकेसी नंबर्स, like this is something that I follow very closely. ये जो लल्लू पंजों वाली मैं क्रिकेट की बातें करता हूँ ना, वो एक चीज होती है। This is something that I'm very proud of, that as a human race within 9 months we have a vaccine which we've never done before. Mashallah, I'm so thankful to the scientists. लेकिन इसमें जो एफिकेसी है उसमें जो एक चीज लोग भूल जाते हैं कि इवन अगर आप वैक्सीनेटेड हो, इवन अगर आपको बीमारी हो भी जाए, ये क्या सच है कि आपकी लेवल इंटेंसिटी ऑफ इलनेस इतनी हाई नहीं होती है वैक्सीनेशन के बाद? हाँ बिल्कुल। मैं आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि वैक्सीन कितनी एफिकेशियस और कितनी प्रोटेक्टिव है। जी हाँ, देखिए इसको ये समझ लीजिए इस तरह, जैसे फ्लू शॉट है, फ्लू शॉट लगवाया जाता है, लेकिन फ्लू शॉट लगवाने के बावजूद भी फ्लू होता है। जो वाहिद स्टडी फ्लू शॉट या फ्लू वैक्सीन के ऊपर हुई है वो ये हुई है कि ये ओल्ड एज में हॉस्पिटलाइजेशन के इंसिडेंसेस को कम करता है। बिल्कुल ठीक है, उस वाहिद एक पॉजिटिव इन्फ्रेंस या रिजल्ट की वजह से इन्होंने अप्रूव किया। अच्छा, कुछ स्ट्रेन्स को कवर करता है, कुछ स्ट्रेन्स को नहीं करता है, और तो समझ में ये आता है कि जो सिवियर फ्लू होता है विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग टू ओल्ड फोक्स, ये उनको प्रिवेंट करता है। तो लग ही रहा है कि कोविड वैक्सीन जो ज्यादा साइंटिफिकली ज्यादा अच्छी वैक्सीन है, हो सकता है कि थोड़े फ्लू से ज्यादा बेटर रिजल्ट्स ये दे, क्योंकि इसमें जो इन्होंने मैसेंजर आरएनए की जो साइंस अप्लाई की है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आई होप जो थ्योरी बोल रही है वही हो। और इसमें ये भी है कि नई स्ट्रेन्स के साथ they can adjust it for the future as well. That's what I hear quickly. जी, अभी सिवाय ये कि साउथ अफ्रीका का जो स्ट्रेन है 145, उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आई होप के इसको ये लोग बेहतर से बेहतर बना लेंगे। और अभी तक ये 90% और 70% जो एफिकेसी बता रहे हैं, दैट्स अ वेरी हाई रेट, क्योंकि आम वैक्सीन जो होती है वो मोर देन 50% पे अप्रूव हो जाती है। चलिए बहुत साउथ अफ्रीका के वेरिएंट से इस साउथ अफ्रीका के वेरिएंट में वापस आते हैं, लेकिन उससे पहले आने से डॉक्टर साहब मेरे थोड़े ना जुस्तजू रहती है। आप लोग कभी भी कोई बात करते हैं मैं पिक कर जाता हूं, और मैं चाहूंगा कि आपने बोला था कि आपकी मार्कम में एक टीम है, उस टीम का नाम क्या है? उसके नाम चेंज होते होते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसका जो मार्कम लाइंस, देखिए यही फर्क है। एक जो टीम है जो एक मतलब जिनके नाम चेंज होते रहते हैं उनको को मैं नाम नहीं देता। एक टीम है जिसका नाम मार्बल है, मैं बोलता हूँ दी बेस्ट मार्बल है। तो आप समझते हैं कि आप इनसे मैच खेलेंगे? हम किसी से भी मैच खेल सकते हैं, लेकिन रिजल्ट की गारंटी देते हैं कि जो हमसे खेलेगा वो जीतेगा। चले से लेकिन उसके बाद बताओ ना, उसके बाद उनका हर बंदा जो है वो कम से कम 3-3 घंटे डॉक्टर के जो है वेटिंग रूम में बैठा रहेगा। लेकिन आप देखें, सबसे अच्छा डॉक्टर है। लेकिन डॉक्टर साहब ने कह दिया कि इंशाल्लाह ईद के बाद क्रिकेट देखें, गवर्नमेंट अगर इजाजत देती है तो नहीं, फिर मैं आ रहा हूँ खेलने तुम्हारे साथ, डॉल्फिन्स के साथ मैं आ रहा हूँ। चलो यार, डॉल्फिन्स बॉयज एक्टिव हो गए हैं, बस मैं थोड़ा सा आपको बोल दूं, बॉयज एक्टिव हो गए हैं। चलें, मैं ये बोलूंगा कि आपका जो आपने बोला, आपका जब भी मैच हो दी बेस्ट से अदील अहमद कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस रबीत। तो पता नहीं वो क्या इसमें लिंक है रबीत के आप दोनों की टीम से, आई हैव नो क्लू अबाउट इट। एनीवे, बैक टू द पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जहां पे मैच शुरू होने वाला है।
ओके चलें क्विकली मैं कमेंट देता हूं फादर अनपॉपुलर व्यू आई एडमिट हाउएवर अ गुड कैप्टन नोज अबाउट बॉलिंग चेंजेस हेंस आई रेट सरफराज बेटर देन एनी रीसेंट कैप्टन आई वुड से सरफराज वाज बेटर कैप्टन आफ्टर यूनुस खान ये है कराची के बहुत ही माने जाने फादर राव कौन कमेंट देगा इसका आमिर चलें आप देते हैं अरसलान भाई नहीं ऐसा नहीं है देखिए एक पहला एज अ कैप्टन उसने एक टेस्ट मैच खेला और वो जीता है आज पता चलेगा उसका असली टेस्ट है उसको वी कैन नॉट से कि ही इज अ बैड कैप्टन सही मैं भी आमिर चलें आप भी देना चाहेंगे पहले आमिर से ले लेता हूँ बड़े देर से चुप बैठे हैं उनको चुप बैठे रहने देता नहीं हूँ हाँ वरना तो दिल कुछ और कहेगा और दिमाग कुछ और कहेगा जी आमिर और अब तो हमारे पास डॉक्टर साहब भी हैं इनकी बातें डॉक्टर साहब जो अपना सरफराज है ऑब्वियसली आई थिंक ही वाज अ गुड कैप्टन मुझे इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि बाबर को भी टाइम देना पड़ेगा अगर आपको खिलाना ही है इसी तरह कैप्टनसी के साथ तो उसको टाइम देना पड़ेगा वो तो अभी आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा कैप्टन है कितना बुरा कैप्टन है वो एक मैच से नहीं पता चलेगा चलो उमैर अली कह रहे हैं ये भी माशाल्लाह डॉल्फिन्स के बहुत ही अच्छे इन स्विंगर बॉलर हैं सजाद भाई आप तो इनको जानते होंगे नए बॉल के बहुत अच्छे बॉलर हैं ये बात कहते हैं हेलो मैक्सी थैंक यू उमैर अली शानी अच्छा जी इनकी अच्छा पाकिस्तान विल गो फॉर द किल एंड विन दिस कौन इससे अग्री करेगा नीचे पाकिस्तान वाले भाई एग्री करेंगे भाई नहीं साहब ने क्लियर कर दिया ना कि साउथ अफ्रीका का वेरिएंट उसका लाज नहीं है अभी से नहीं साउथ अफ्रीका तो पाकिस्तान के साथ सुल्तान भाई ये गेम ना करे वो वेरिएंट का है ये अभी वेटरन और मार्करम की बात हो रही है मार्करम की हारिस क्या नहीं है पाकिस्तान के पास भाई अब घर में नहीं करेगा तो कहाँ करेगा भाई यार तुम सपोर्ट कर रहे हो या मतलब तुम उनकी की साइड हो ना पाकिस्तान को हाँ अच्छा सही नहीं वो कह रहे तुम सपोर्ट कर रहे हो धमकियां लगा रहे सही है देखो सपोर्ट तो सारे पाकिस्तान को कर रहे हैं हम तो सिर्फ फैक्ट भाई अब आप अपना दिल ना बदलें अब दिल मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को ये कौन कह सकता है कि हम सपोर्ट नहीं करते लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त उनके चांसेस बहुत ज्यादा चांसेस हाँ वही बात चांसेस की बात हो रही चलें अगले कमेंट पे आते हैं सैफ रिजवान जी ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हमें वो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट वायरस लग गया है ऐसी बात नहीं है अल्लाह ना करे अल्लाह सबको सेहत दे सैफ रिजवान कह रहे हैं व्हाई इजंट अतील अहमद ऑन द पैनल इसका जवाब मैं लेना चाहूंगा अपने आप से मैं फिर सैफ रिजवान कहूंगा जो लोग शो चलाते हैं वो शो में नहीं आते हैं तो समझ गए आप दूर की बात कर दी ये अतील अहमद कौन सा शो चला रहे हैं यार बताओ जरा मुझे ये बात वो कर दी इसने कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती और ये सोचने की बात है बयान कौन है और तलवार कौन है देखो शो जरूरी नहीं है कि टीवी पे चले शो होता है कि जो पीछे से चलाते हैं एनीवे आगे बात चलते हैं जुबैर अली कह रहे हैं हसन अली नीड टू स्टॉप लीकिंग रन्स बरम कम और बॉलिंग पे ज्यादा फोकस करे ओए ओए कौन जवाब है इसका मुझे एक और चीज करने के हसन अली काफी लंबी इंजरी से होके आया है डॉक्टर तो ये क्या कहते हो कि कितना शादी को इंजरी कह रहे हैं किसको हाँ कैसर भाई आप तो डायरेक्ट ही हो गए हाँ नहीं अली ये बताएं कि जो थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो उसकी इंजरी का बैक का काफी इशू है तो और ये आके बड़ी टेस्ट मैच में आ गया 10 मैच पहले 9 पहले खेलते ये 10वां खेल रहा है कितना है कि ये दोबारा इंजरी प्रून ये दोबारा कितना है काफी ज्यादा खेलेगा पाकिस्तान क्रिकेट मुझसे पूछे जी आपसे देखें यंग एज में अगर आप इंजरी की रिहैबिलिटेशन करके आ रहे हैं तो यू आर गुड एज इफ यू नेवर हैड एन इंजरी ठीक है तो यंग बंदा है पूरा आई होप कि पूरी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन करके आया होगा लेकिन जैसे डॉक्टर नुमान न्याज टाइप के अगर हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट हों टीम में तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट है मैं उनको काफ़ी डिटेल और बहुत ज़्यादा मैं उनको सुनता हूँ तो उनकी जो साइंटिफिक अप्रोच है मेडिकल अप्रोच है उस टाइप की टीम लाएं तो हसन अली की इंजरी कोई इंजरी इतनी नहीं थी ना ही कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर था ना ही कुछ और था ही विल बी फाइन चलो गुड थैंक यू चलो अगले कमेंट पे चलते हैं मतलब क्या बाबर आजम को भी शादी कर लेनी चाहिए तो हसन अली के क्या शादी कर लो उठाओ तो ना पीछे पीठ पे नहीं दैट वाज द फैक्ट अरे वो शादी में चूल्हे मांगे तो होते हैं कुछ लोग दिमाग पे पाकिस्तान डिपेंड कर रहा है डॉक्टर साहब कुछ लोग के दिमाग पे चढ़ जाती है कुछ लोगों के कंधे पे
ये सही है। मैं और हारिस जो है ये बातें नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप लोगों से जो भी आप लोगों से बातें करनी है, आप अपने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाइए शादी के बाद के हमारी फवाइद। जितनी क्रिकेट होती है वो ऑनलाइन ही होती है, हम व्हाट्सएप की क्रिकेट नहीं वो खेलते। फोटो नहीं सोशल मैक्स तुम मीडिया भागो पे नहीं, आई है। मैक्स तुम भागो नहीं, माशाल्लाह से शादीशुदा हो। हाँ जी डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे आप? हसन अली की वो फोटो वो सोशल मीडिया पे है, तो यानी यार हमारी चलें आगे चलते हैं। तो अभी बिग टीम ऑफ 1% मोहम्मद इरफान, प्लीज वो ढूंढ की तरह लाना पिक्चर। चलें आगे चलते हैं। अभी जो बात जुबैर ने करी है कि भरम कम बॉलिंग पे ज्यादा फोकस करे, कोई इस पे कमेंट देगा या मैं आगे चलूं? भरम तो है उनके माशाल्लाह। हारिस नहीं, देखें जहां तक मैं उनकी बॉलिंग की लेंथ देख रहा हूँ, ही इज लुकिंग फॉर स्विंग। जो ये बाउंड्रीज लगी थी ऑन दी ओवर पिच डिलीवरीज, इट्स बिकॉज ही इज लुकिंग कि वो लेट स्विंग आए उनके लिए। ये बात है कि मार्करम वाज कवरिंग इट रियली वेल, और यूजुअली ऐसे ही होता है कि यू नो अर्ली ऑन यू आर गोइंग फॉर इट, मगर उसकी वजह से वो लेग साइड पे भी लाइन हो रही थी क्योंकि वहां से वो स्विंग करने की कोशिश कर रहे थे। सो इट्स दैट सर्च फॉर मैजिक बॉल के शायद भरम से ज्यादा पेशेंस पे उनका काम करना है। यू नो पहले टेस्ट मैच में वापस आए हैं, रियली इंजरी के बाद 5 विकेटों के पहली इनिंग्स में की थी, तो वो तो कोशिश कर रहे हैं ना कि कुछ स्पेशल करे पाकिस्तान के लिए, बट होपफुली आज के दिन के लिए बेहतर जाएगा। सही। चलें आगे चलते हैं। स्पिन गुल कह रहे हैं आई लिव इन न्यू मार्केट। सुल्तान भाई यार आप पाकिस्तान मेरी व्यूअरशिप हो गई तुम्हारी मैक्स, देखा जा रहा है। खराब हो गया मेरा फैक्ट, बट नाइस टू नो कि ये इधर लोकल रहते। फिर तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी, जरूर चक्कर लगाइएगा मेरी तरफ। चले जी, आपको मुबारक हो, हसन अली ने बोल्ड कर दिया है वेंडूसन को उसी तरह जैसे फर्स्ट इनिंग्स में किया था। चलो भाई माशाल्लाह, अच्छी बात है। पाकिस्तान विल गो फॉर द किल। आई थिंक उमर अली की बात हो रही है। चलो आगे चलते हैं इंशाल्लाह। नहीं मौके खत्म हो गया जो था वो पहले डिसाइड हो गया। हम भी फिर सारे वो जनरेटर ऑन करते हैं। चलो मैं क्विकली कमेंट्स लेना गाइस, मुझे थोड़े से कमेंट्स लेने। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन। एहसन शबीर थैंक यू फॉर वाचिंग। यूट्यूब पे फेसबुक पे भी देखो और कमेंट करो और शेयर करते जाओ। पाकिस्तान टीम जिंदाबाद। ओके वैसे फादर कह रहे हैं जी सर, ये साउथ अफ्रीका के साथ ना जिंक्स का जो ताल्लुक है वो हमेशा से रहा है। एक बॉल पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका की अभी इनिंग शुरू होने से 1 मिनट पहले उन्होंने वही बॉल दिखाई जिसपे वेंडूसन आउट हुआ था, और दूसरी ही बॉल पे वैसे ही आउट हो गया है वो। देख ले नहीं मैं वही दोबारा देखा, मैंने रिप्ले के बाद आपको कंफर्म किया कि आउट हुआ। अच्छा मैंने कहा पहले दिन से हम मतलब पैनल पे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले दिन कहा था कि हसन को एक तो पेस चाहिए, निपी है, और उसकी रिवर्स स्विंग जो है ना वो जब तक वो आगे नहीं खिलाएगा तब तक इफेक्टिव नहीं होगी। और आपने सही कहा कि उसकी बॉल जो है ना कल टेक केयर शायद नहीं सही की गई, तो थोड़ा सा। और आप अभी दिखाया इन्होंने कैसर भाई, जो मैं बात कर रहा था, तो कुछ लोग हंस जाते हैं मेरी बात पे, पर उनका ज़र्फ है। लेकिन आज आपका कप्तान जो है वो मिड ऑफ पे खड़ा हुआ है और वही बॉल को शाइन कर रहा है, तो ये सोचने और देखने की नजर चाहिए। हर बंदा तो नहीं ना, हर बंदा नहीं है, हर बंदा जो आप बैटिंग स्ट्रेटजिस्ट को नहीं समझ पाते ना यार। लेकिन मैं एक बात बोल जी फरूख भाई बोलते हैं थोड़ा सा। पहली बॉल जो हसन अली की हुई है वो 3 टप्पों में गई है कीपर के पास। अगली देखें यार भाई मेरे, अगर अदील अहमद, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और आपके कानों में मेरी आवाज जा रही है, प्लीज इस साल की कैप्टनसी के बैलेट में सारे नाम जो हैं वो 3 पर्चियां डलेंगी, एक में एम, एक में डब्ल्यू, एक में एफ। ओके राव कह रहे हैं अदील अहमद इस कैमरा शायद। आगे चल लेते हैं भाई। एहसन शब्बीर कह रहे हैं थैंक यू एहसन शब्बीर फॉर वाचिंग इन टुडे। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल। देखें सब दुआएं कर रहे हैं, कोई भी ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ये करेगा तो जीत जाएगा, यानी दुआओं पे पाकिस्तान जीत जाएगा। दुआओं से तो जीते हमेशा। आमिर हम घर चलते हैं यार, ये हम घर में यहाँ बैठे हुए, खत्म होने वाला है शो। आगे चलते हैं। हम बंद कर रहे हैं यार। वर्ल्ड कप 1992 में जीता रमजान था, चैंपियंस ट्रॉफी आपने इतने अरसे बाद देखी, फिर रमजान। अब और क्या कहते हैं यार? हम परफॉर्मेंस में कब जीते हैं यार, ये बताओ मुझे। हम जीते दुआओं से जीतते हैं, दुआओं से जीतते हैं। सही है, चलिए दुआओं में बड़ी बरकत हम दुआओं से पास होते हैं, शादियां हमारी दुआओं से होती हैं, मैच हम दुआओं से जीतते हैं भाई। तो हम लोग करते क्या है? चलें आगे चलते हैं। असल में अब कहना पड़ेगा कि दुआ नाम रखना छोड़ दे। अच्छा लेकिन देखें जी ऑस्ट्रेलिया दुआओं के बगैर जीत जाती है, ये भी तो देखें ना, अल्लाह इतना रहीम है। चलें बिल्कुल अल्लाह ताला रहीम है। मैं ये फिर बोलूंगा कि आप चाहे जितनी दुआ कर लें या चाहे जितनी मेहनत कर लें, और जितना ही लक है आपकी, अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली उस मेहनत का ही रिजल्ट वो दुआओं से आता है। आगे चलते हैं।
हाँ जी, Hassan needs to limit his playing prior to injury. He was playing for Pakistan and all other leagues. तो obviously बात है, अगर वो नहीं खेलता तो फिर टीम में आता तो तुम लोग हम ही लोग बोल रहे थे भाई खेले बगैर आ गया। तो फादराव प्लीज वो एक्सप्लेन करें कि प्लेइंग कहाँ पे। नहीं एक वो कह तो रहा है प्लेइंग फॉर पाकिस्तान लीग्स। एक सेकंड, हारिस बैक मी अप। Fahad Rao is talking about load management from basketball. वही तो load management तो चैंपियन बनता है। फादर राव अपना कमेंट कर दो। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। हसन अली के जनरेटर वाले जो उसका रिस्पांस होता है, मतलब उसके ऊपर जरा कमेंट ले लें कि वो कितना स्ट्रेस प्रोन है उसकी इंजरी के हिसाब से। कम ऑन, ही इज एन एथलीट। चलें ले लेते हैं जी डॉक्टर साहब। बहुत ऑब्वियस है कि जो बैक के मसल्स हैं, आप वैसे ही इतने ज्यादा एग्जॉस्टेड हो, सॉल्ट एंड वाटर आपका वैसे ही एक्सक्रीट आउट कर रहा है, सीक्रेट आउट हो रहा है, ऊपर से आप बेंड करके पीछे अचानक जब आप स्पैज़म में जाओगे तो यू आर एक्चुअली इनवाइटिंग एनी काइंड ऑफ इंजरी इन योर अपर बैक मसल्स। इसकी जरूरत नहीं है यार। शाहीन आफरीदी जैसे करता है उसी तरह करो। किस तरह वीडियो नहीं शाहीन आफरीदी जो वीडियो करता है बस वो कर ले। हाँ बस वो यार एक वीडियो यार। अच्छा लेकिन मैं ये कहूंगा, लेकिन हसन अली के ऊपर मैं ये कहूंगा कि देखो बॉलर जो फास्ट बॉलर उसका एग्रेशन जो है ना, उसका एक है, एक स्टाइल है अपना। आई थिंक अगर वो निकाल देंगे ना तो उसका एग्रेशन भी खत्म हो जाएगा, उसके वो आपको इतना इफेक्टिव लगेगा नहीं। लेकिन एग्रेशन ठीक है लेकिन एक आपका स्टाइल होता है ना, आपको एक आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एक तरीके से। उसने अपना वो जनरेटर का बेचारे ने मॉडिफाई कर लिया है काफी, वो नहीं झुकता है इतना जितना वो पहले झुकता था, इतना नहीं झुकता। तो पता चलेगा उसका भरम वापस आ गया। आमिर आप तो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो भाई, आप कहाँ एग्रेशन की बातें कर रहे हो भाई। यार आपको क्या पता जी, नुमान अली का आपने अभी देख लें पंजा अगर दोबारा लग गया ना फिर आप देखिएगा स्टाइल। या इमरान ताहिर को नहीं देखा चला गया। आज दुनिया घूम के आता है वो वापस बेचारा। चलें आगे चलते हैं। कमेंट्स काफी सारे आए हैं, मुझे कमेंट्स लेने दें। उमर अली कह रहे हैं रिजवान इज अ गुड फाइनली समवन टू रिलाई हु कैन मेक रन्स क्विकली। हारिस नहीं, देखें पाकिस्तान की बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम थी कि लेट ऑर्डर उनका कभी भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच में। यहाँ जो नुमान अली ने अपना जो खाया 45 रन, यासर शाह तो था ही, मगर दैट लेट ऑर्डर बैट्समैन जो आप रिलाई कर सकते हैं इज ह्यूज फॉर यू टू बी एबल टू गेट दैट लीड। और रिजवान जो कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी रहेगा। सही। आपके देखने वालों में से एक बहुत ही देखने वालों ने एक कमेंट किया, ये व्हाट्सएप वाला शो फेसबुक पे आ गया है आज। अब आप ये मुझे पता है क्या बात कर रहा है, आपको नहीं पता वो क्या बात कर रहा है। तो आई नो कि व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, जो हमने अभी बातें कर रहे थे हसन अली कंधे, और जो आप समझ गए ना, तो ये व्हाट्सएप पे बातें होती हैं हम लोगों की। तो आई थिंक वो ये बात हम यही चाह रहे थे कि हम जो है ना व्हाट्सएप को टीवी के ऊपर ले आए, व्हाट्सएप को टीवी पे ले आए। इसमें गलत क्या है? ये तो कॉज ऑफ इंजरी बताई गई है। कॉज ऑफ इंजरी बताना तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं। डॉक्टर साहब अरे नहीं वो बुरी बात नहीं कर रहे हैं। वो असल में हमारे प्रेसिडेंट हैं, कमेंट लेना पड़ता है। आगे कैप्टनसी आ रही है, मैं साइन कर दूंगा यार, कोई डॉक्टर साइन कर देगा, कोई मसला नहीं है। खत्म बात। और फैक्स नंबर मुझे दे देना, भिजवा दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, दो आगे बैठे में वो जो कहते हैं कैसर भाई और MWF, उनकी रूए रवा कमेटी में तो लेना पड़ता है। जुबैर अली कह रहे हैं ले गया हसन विकेट जी भाई, ले गया। और आगे चलते हैं, अभी देखते हैं क्या क्या लेके जाता है। अदील अहमद कह रहे हैं हसन अली कैन कीप द भरम आफ्टर दिस बॉल बेटर देन फर्स्ट इनिंग्स। क्विकली आमिर क्या कहोगे, बेटर देन फर्स्ट इनिंग? यार मैंने तो अभी नहीं देखी बॉल, मैं तो शो में हूँ और कंप्यूटर भी जवाब दे जा चुका है, तो मुझे तो अभी जाके देखना पड़ेगी कि किस तरह की बॉलिंग करा रहा है वो। लेकिन पहले जो लास्ट उसने कराई है बॉलिंग, मुझे तो कोई खास नहीं लगी उसकी। वो लाइन ढूंढ रहा था, आई गेस ओवर पिच करा रहा था बार बार, लेकिन लाइन ढूंढ रहा था अपनी। हो सकता है लाइन उसको मिल गई है, उससे कंसिस्टेंटली फॉलो करे तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान जीत जाएगा मैच इंशाल्लाह। इसलिए इनसीम इतनी जबरदस्त आई थी, जो लेग स्टंप बाहर 5वें स्टंप से लेग स्टंप उड़ा के लेके गए। बिल्कुल 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 सही। चलो अगले कमेंट पे चलते हैं। हमारे दिन कह रहे हैं एंड इट हिट द क्रैक टू। सही। बस मैं क्विकली मैं कमेंट्स ले रहा हूँ, उसके बाद फिर मेरा जो राउंड अप शुरू होता है वो फिर शुरू होगा। आप लोगों को पता है जो फिर आगे जो मैं करता हूँ आप लोगों के साथ। हमाउद्दीन कह रहे हैं डॉक्टर अली कैन हसन अली सेलिब्रेट कॉज ऑफ इंजरी? जी आई थिंक यू ऑलरेडी आंसर्ड। इट कैन कॉज, यस। सही। अच्छा इसके ऊपर यस नो, मोहम्मद सुहेल यासिर विल टेक 5 विकेट्स। नीचे जो पाकिस्तान वाले हैं, कैसर भाई यस नो? ही नीड्स टू, ही नहीं या नहीं, ये नहीं यस नो नहीं। आमिर नो। अरसलान भाई नो नो। MWF नो
डॉक्टर साहब? गूगली के बगैर कोई चांस नहीं सर, यस नो? नो फाद राव कह रहे हैं थैंक यू सज्जाद भाई। किस बात का? अभी किस पे? अच्छा वो बास्केटबॉल वाले पे शायद थैंक यू बोला उन्होंने। ओके। हसनैन खान कह रहे हैं शुक्रिया हसनैन, तुम आए, कल शायद गायब थे। अस्सलाम वालेकुम। हसन अली इज ओन अग्रेशन, ही इज अ फास्ट बॉलर, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स प्लीज गाइस। बस सुन लिया भाई, उसको करने दो, अपनी जिंदगी का मालिक है। उसको इंजरी की बात करे, वही तो करने दिया था उसको, दुबई गया कर लिया। तो वकार यूनुस से बेहतरीन एग्रेसर कौन था? उसका सेलिब्रेशन क्या होता था? हाँ, नहीं वकार यूनुस का तो कोई सेलिब्रेशन नहीं था। आई थिंक ये था यार, खूबसूरत रन अप किसी एथलीट का नहीं आया है। बिकॉज़ ही इज एन एथलीट। कोई रन अप ही नहीं है उस जैसे एथलीट का जो उसका था। ये आई थिंक द बेस्ट। In my opinion, I think Dale Steyn has the nicest run up, but that's just me. Alan Donald, I've seen Vakar a lot. Vakar मेरा सबसे favorite bowler है, but Dale Steyn to me was just poetry in motion. जैसे Michael Holding की लोग बात करते हैं, I love watching Dale Steyn. मैं बोलूंगा तुमने वकार यूनुस के भी लाइव मैचेस देखे? आई मीन आई थिंक यू आर यंग राइट, काफी तुमने शायद लाइव मैचेस नहीं देखे होंगे राइट? आपने लाइव अगर वकार यूनुस और एलन डोनाल्ड, एलन डोनाल्ड एज वेल। एलन डोनाल्ड बिल्कुल स्मूथ बॉलिंग एक्शन जो एक दफा पूरे रिव्यू करके तमाम जो वो थे एक्सपर्ट्स, उन्होंने जो सबसे स्मूथ जो था वो माइकल होल्डिंग, Whispering Death. हारिस मैं तुमसे बोलूंगा सिर्फ एक बात वकार यूनुस की। अगर वकार यूनुस की बॉलिंग और रिदम देखना ना, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका शायद 93 की वो सीरीज है जो पाकिस्तान फर्स्ट टाइम जो ट्राई नेशन जीता था वहां पे। कुलिनन को आखिरी 2 वनडेज में बोर्ड मारे थे उसने। वो 5-5 वो 2-2 रन के रन रेट पे चाह रहा था वकार यूनुस, उससे 2 रन नहीं हो रहे थे ओवर में। जो यंग फोक्स है ना, वो YouTube में जाके उनकी फ्लैशबैक्स देख लेते हैं। हम लोगों ने 90s में बिल्कुल देखा हुआ है, 5-5 दिन हमने देखा है, तो वो जो देखने का मजा था ना, वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शारजाह में बहुत मैचेस देखे उसके, it was beautiful to watch him bowl, वो बात नहीं है, but I'm just saying it's और अब जितने यंग बॉलर पाकिस्तान में आ रहे हैं ना, वो उनकी अब वकार का एग्रेशन अब देख रहे हैं वो लोग, उन्होंने सबका एग्रेशन खत्म कर दिया वकार ने। हाँ सही सही कह रहे हो। वो टोटल ट्रॉफी थी आई थिंक उसी का था, लेकिन बहुत ही अच्छे पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान 43 पे आउट हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान इवेंचुअली वो सीरीज ट्राई नेशन जीता था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा उमैर अली कह रहे हैं हसन अली से ब्राउन मुंडे वाली टिकटॉक बनवा लो। यार ये मुझे नहीं पता, क्या मैं नहीं हूँ टिकटॉक पे, कोई है क्या है ये, कोई जोक है? कोई मैं में उसने वीडियो अपलोड की अभी टिकटॉक। ओके चलें बैक टू द सीरियस टॉपिक। पाकिस्तान डिड नॉट विन इन 93, गॉट टू द फाइनल एंड लॉस्ट टू वेस्ट इंडीज इन 2 गेम। नहीं पाकिस्तान जब भी 93 में गया था, 96 में गया था। ये सिर्फ सीरीज थी। अच्छा मेरी बात सिर्फ सुनो, सीरीज थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मैं आपको बता देता हूँ सर, आप मेरी बात सुनिए। जी सर। They beat South Africa 3 times. They lost to West Indies. नहीं मेरे हाथ से वेस्ट इंडीज से सारे मैच हारते थे। They lost to West Indies और फाइनल एक ही मैच का था, वो ये हार गए थे। 43 ऑल आउट केप टाउन में हुआ था, that was on a different date. That was a league game. और साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा देता था। It was like everybody's beating everybody else. लेकिन वो सीरीज मैं सजाद भाई वो सीरीज हार गए जीता था। सीरीज पाकिस्तान जीता है? नहीं जीते थे, वो फाइनल में हार गए थे। चलें इसको कल लेते हैं। चलें कल कर लेते हैं। अच्छी बात आपने करी है। पाकिस्तान ओके, साउथ अफ्रीका ट्राई सीरीज की बात, जी उसी की बात कर रहे हैं यार आप लोग। पॉल एडम्स के अच्छा फाद राव कह रहे हैं, सैफ रिजवान क्या नहीं, क्या ये रे फाद राव यार आप लोग पॉल एडम्स के रिदम को देखो। जी फाद राव सही कह रहे हैं। फाद राव ने मेरे ख्याल में अताउर रहमान का रिदम नहीं देखा, फिर पॉल एडम्स तो बहुत दूर है। बेचारे अताउर रहमान के साथ बहुत ज्यादती हुई है। अच्छा तो मैच क्या हो गया, पॉज हो गया? नहीं टाइम हियर नेक्स्ट। हां बोले नजर आ रहे हो, बोलो तो भाई। नहीं वो आवाज लॉस्ट हो गई थी। तालियां मार। कोई बात नहीं, उस दिन देखा नहीं था जब फ्रीज हो गए थे, तो हमने शो करवाओगे तो हम लोगों को तो सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा भाई। नहीं चलो बस अच्छा चलो यार रैप अप करते हैं। थॉट्स अबाउट PSL 6 एंथम। सैफ रिजवान यार ये जब PSL पे शुरू होगा और जब मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी तो भाई बहुत दिल दुखा हुआ है इसके ऊपर यार। ये कमेंट भाई ये सवाल ना लेना प्लीज यार। सैफ रिजवान ये सवाल नहीं करो, भेज दिया हमने। चलो आगे चल लेते हैं। यस यू आर राइट सजाद भाई। चलें आप आखिरी 2-3 सवाल आते हैं। ओके आप लोग अभी शुरू में, फिर मैं दोबारा सवाल कर रहा हूँ, क्या आप में से कोई अपना डिसीजन चेंज करना चाह रहा है या अभी भी वही 3 साउथ अफ्रीका 5 पाकिस्तान?
5 नहीं 6 हो गए, 1 2 3 6 हो गए। आपने अपना फैसला सुना दिए क्लोजिंग से पहले? डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं सुल्तान भाई। नहीं मैं वो मेरे से बात कर रहे हैं अच्छा जी। कोई अपना फैसला चेंज करना चाह रहा है? नहीं यार, एक और चीज, चलो अपने अच्छा, 3 और मैंने 6 वो कंफर्म कर लिया, वेस्ट इंडीज ही जीता था जैसा ज्यादा कह रहे थे। वो 43 वाला गेम भी था और उसके बाद जो फाइनल भी हुआ था वो भी पाकिस्तान हारा था 187 बना के, वेस्ट इंडीज ने 190 चेस कर दिया था। ओके दैट्स गुड। चलें, शुक्रिया सज्जाद उस भाई। के मैचेस मेरे दिमाग में they're seared। पूरे वो 8 घंटे याद होंगे सज्जाद भाई को। चले, मुझे काफी हद तक वो याद है, वो काफी हद matches। तक याद है। चले अच्छा, आगे चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन रह गए। आज 5 विकेट कोई लेता हुआ नजर आ रहा है? यस, पहले बताओ कोई यस तो नाम बताना। यस कौन कौन है? हसन अली। नहीं, आप तो साउथ अफ्रीका के हैं ना, आप तो opinion तो हो सकती है यार। साउथ अफ्रीका जीतेगा लेकिन हसन अली 5 विकेट लेगा। हाँ बिल्कुल। ओके, ये अच्छे लगे। और कोई है जो 5 विकेट? कैसर भाई चलेगा शायद। डॉक्टर साहब कोई 5 विकेट लेता नजर आ रहा है? सब 2-2 3-3 लेंगे, 5 कोई नहीं। अरसलान भाई? हसन अली और मैच जिताएगा हसन अली। यस। आमिर? मुझे नहीं लगता कि 5 विकेट शायद कोई लेगा, लेकिन हाँ विकेट सब लेंगे 3-4 इस तरह करके। हारिस? जी मैं यही बात है, 3-4 लेंगे सब लोग। यासिर शाह 4 लेगा लिख रहा है। कैसर भाई कोई लिख रहा है 5 विकेटें? कैसर भाई आई थिंक आप हसन अली हैज अ चांस। हसन अली। हसनैन खान कह रहे हैं जो हमारे देखने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि शाहीन विल टेक अ 5 सही है। चलो अच्छा जी, ओके। आखिरी कुछ सवालात रह गए। मैच टी पे जाएगा, आखिरी सेशन में खत्म हो रहा है, टी से पहले रैप अप हो रहा है? कौन कह रहा है? कौन? अच्छा चलो अब ये कर लेते हैं, पाकिस्तान कितने रन से मैच जीतेगा? 3 ब्रैकेट है नीचे 6 वालों से। क्या दोगे पहले ये under बताओ, तुम 25 हर दफा गोली कराते हो, लोगों से सवाल पूछ लेते हो, कुछ देते हुए तो नहीं हो। नहीं, मैंने कुछ देने का वादा ही नहीं किया। अच्छा नहीं, चले इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ आएगा। ओके, ब्रैकेट्स हैं लेस देन 20। कौन कह रहा है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा लेस देन 20 में? लेस देन 50? लेस देन 20 रन्स की बात कर रहे हैं। अभी तो आप तो साउथ अफ्रीका पे आएंगे ना विकेट पे। हम जीतने वाले हैं ना, हम तो लेस देन 50 पे हारिस तुम हो, और कोई है लेस देन 50 पे? लेस देन 50। अरसलान भाई? 50 के अराउंड, 50-60 का अराउंड। कैसर भाई? कैसर भाई? Yes, 40 to 50 runs, I believe. 40 to 50। MWF? 75। आमिर? हाँ मुझे लगता है 60 to 50 के दरमियान जो है ना ये बुक होना चाहिए। ओके चले अब आ जाते हैं। साउथ अफ्रीका कितने विकेट से मैच जीत रहा है फरूक भाई? 3 हैं? 3। और सुल्तान भाई? 2 विकेट्स। 3-2-1। सजाद भाई? 2 विकेट्स। एक ही रह गई है। ओके अच्छा जी, आखिरी सवाल है, और सवालात ये है कि मैन ऑफ द सीरीज कौन है? क्विकली वन नेम स्टार्टिंग फ्रॉम हारिस। दैट्स टाइट। कोई आई थिंक ये आखिरी वाली इनिंग्स अगर हसन अली ने एक और ले लिया उसे दे देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हैजंट बीन एनी लाइक वन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। अगर हसन अली ने यहाँ 4 विकेट ले ली उसे मिल जाएगा। सही। वसीमुद्दीन कह रहे हैं फवाद फ्यूचर आफ्टर द सीरीज। आमिर? हाँ आई थिंक टेस्ट मैच में तो ही विल स्टे डेफिनेटली, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। एग्जैक्टली। ये नहीं पता शायद सऊद शकील को डाल दें फवाद की जगह। नहीं फवाद विल स्टे। इतनी भी नहीं हो रही भाई। अच्छा जी, सही है। तो मेरे ख्याल में वैसे उसका फ्यूचर ये भी है कि क्या पता कप्तान ना हो जाए वो। नहीं यार फरूक भाई की बीबीसी आ गई थी कल ही, ये मेरे ख्याल है कोई और पता चले कि बीबी से बात करने के बाद बोल रहे हैं। तो मैं जरा रिकैप कर दूं। फरूक भाई, सज्जाद भाई और सुल्तान भाई कह रहे हैं साउथ अफ्रीका मैच जीतेगा और 1 या 2 विकेट से मैच जीतेगा, यानी लास्ट सीरीज से मैच जाएगा, और तकरीबन लग रहा है कि टी के समझो कि 1-2 घंटे के बाद का गेम होगा। और बाकी जो हमारे 6 पैनलिस्ट हैं, आमिर, कैसर भाई और डॉक्टर साहब, MWF और हारिस, कह रहे हैं कि पाकिस्तान मैच जीतेगा और विद इन 50 to 70 रन से मैच जीतेगा। राइट जी। और नोमान और मैं ये बोलूंगा कि नुमान हो या चाहे कोई भी हो, मैच वही जीतेगा जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी मेहनत करेगा।